And I want to take the opportunity, even though I'm very, very unqualified to speak in the middle of all you very blessed and advanced devotees spiritually, in Siddhanta. And I am just, for years I was stuck in sadhana bhakti, or even less, trying to do the minimum to maintain my spiritual life. So I feel very unqualified. So if I make mistakes, please forgive me. So let me see. I wanted to say my prayers first to the spiritual masters. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Charu Swami iti namine. Snigdha Cheta Supraneta Vagnimam Charasaplutam Prabhupada Gata Pranam Naumi Bhakti Charu Padam. Namo Vishnu Padaya Gaur Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Vana iti namine. Vandeham Bhakti Chakoram Gauranga Nija Prestitham Srimate Bhakti Vedanta Swami Vanam Namastubhyam. Shri Radha Ekanishthitham Rasayana Kathamritam Sankirtana Anandadham Goswami Vanam Namaha. Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmane Sri Srimad Bhakti Vedanta Narayan iti namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami niti namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschat Deshatarine. Namo Vishnu Padaya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So first of all, I like to offer my obeisances to my Diksha Guru, His Holiness Bhakti Charu Swami, who unfortunately left us in 2020. I accepted reinitiation from him in 1993. So I had been in ISKCON by that time since end of 1978, and I was first initiated by Bhagwan Das Prabhu, was Bhagwan Das Goswami at the time, in 1979, and I got Brahmin initiation in 1981. But then in 1986, Bhagwan Prabhu unfortunately decided to give up his sannyas ashram and also stop being a guru. So we were put in a very awkward situation, and my faith in spiritual master took obviously a very bad turn. And but still I went ahead, and I wanted to be part of ISKCON because I was very, very much attached to Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And I didn't know anything of what was going on behind the scenes. I was very ignorant, actually very naive. And I was more concerned with my own life and getting things together than, finding out what was happening behind the scenes. Even when I was in the temple, I used to just bother myself with my service. I used to, always engage in deity worship. I was making like garlands, helping with the cooking. And after my initiation, I was engaged in dressing the deities and cooking for the deities. So I used to do my seva and just don't bother too much of what was going on, thinking that was the best thing to do, and then got into politics and just tried to be Krishna conscious. But I was green behind the ears. I didn't know what was going on. So I had to pay a big price for that. But at the same time, we understand everything that happens to us is Krishna's arrangement in some way. And today I don't have regret of anything that I have endured. All the bad experiences also, because they were only stepping stones to what I have achieved today. That is my feeling. So first of all, I offered my obeisances to my Diksha Guru, and then I offer my respectful obeisances thousands of times unto my beloved Shripad Van Maharaj,
And I consider it my very great fortune that I came across him, that I met him, and that he is now in my life, and that I got his anugatya. So yes, that is my big fortune, and since we have engaged in glorifying him, I didn't want to let this chance go. And then I offer my respectful obeisances unto Nityalila Pravishta Om Vishnupad Astotra Sumat Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, by whose teachings I have become very attracted and inspired. And due to the politics that were going on in ISKCON, I actually purposely held myself from getting involved, even though I knew of the existence of Srila Gurudev. I didn't make any endeavor to meet him. And that was in one way my misfortune, or I wasn't ready, whatever. And then I offer my respectful obeisances thousands and thousands, millions of times unto the lotus feet of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, because if he had not come in my life, then I don't know where I would be today. I came to Holland when I was 14 years old. And on the very first day that I was in Amsterdam, I met the Hare Krishna devotees, and I immediately got the book Sri Ishopanishad, but attracted by the picture on the front cover of the picture of Vishnu with the Anantasesha and his back. So because I was always attracted to religion, in my family, there's a lot of pandits. And as a child, I used to be around them a lot. My great-grandfather came from India, went to Suriname. So he had a trunk, so a metal trunk that you see in India a lot. And in that trunk, he had a lot of books. And one of the books had drawings, all these drawings of Krishna, you know, from his childhood up till his Aunt Leela. It was called, I don't know what it was called. The book was in Hindi. But I used to love watching the pictures in it, all the drawings, the pictures, you know, and that was like, I was like 3 or 4 years old. That's my earliest memories of how I was attracted to Krishna. But then I was attending the functions with the pandits, because my grandmother, from father's side, my father's mother, she used to cook for the pujas, for the functions, and then she would take me along, and then I would help the pandit, you know, with gathering flowers and just like assisting, you know, getting little things, pots and water and things like that. So from very young age, I was in that environment. And so I was watching the pujas going on and everything. And then I was wondering, who of them is supreme, actually? You know, and by that time I was 6 or 7 years old. So I was asking the pandits, who of from all the Devis and Devatas that, you know, that we worship, who is supreme? And I remember them telling me, it doesn't matter. Whoever you're attracted to, whoever is your Ishta Devata, you worship, and ultimately God has no form. And I thought God has no form. It didn't make any sense. So I couldn't accept that, but I didn't go against them, you know, because it was not expected that you would speak against the pandits. But in my mind, I was thinking, how is that possible? We all have forms. Everything has forms. How is God without forms? How can something with form come from something that has no form? And what happens then with all these forms? They just dissolve, and it was like, you know, it was like in my mind that it was all these questions were going on. And then that's when I decided to learn Hindi. I was 8 years old. So I found a teacher, and within 3 months, I learned the alphabet and like the basic Hindi words. And then the teacher didn't turn up anymore, because I was living in Suriname. I was born in Suriname in South America. And the place I live was called Mungo. And it was 3-hour drive, 2 to 3 hour drive from the capital city, from Paramaribo. So this teacher just happened to come to give us once in the week Hindi classes.
And after 3 months, I had like learned the basics, and we were supposed to have a basic exam, and then it didn't come anymore. So my Hindi was too poor and I couldn't understand. So I was, only thing that I learned at that time was the Hanuman Chalisa. I could read that and I memorized that, and that was it. And Bhagavad Gita I tried to read, but it didn't make any sense. So that then you can understand how glad I was to get Srila Prabhupada's Sri Ishopanishad in Dutch. And I saw it has the Sanskrit, and it has word by word transliteration, and then it has a running translation, and I was thinking, wow, this book is great. And the first was Om Purnam Ada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyati. And the personality of God that is perfect and complete, and because he's completely perfect, everything that emanates from him is also complete in itself, and because he is the complete whole, even though so many units emanate from him, he remains the complete balance. And I was thinking, wow, this is so beautiful, so complete. So who is this person? Who is this person from whom everything animates? And then I read on, and then Krishna Prabhupada says this one sentence that just caught me. He said, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. And that was it. I was saying, that's my answer. That's what I wanted to know. So then I looked at the book, I read the mantras, and then I looked at the picture of Srila Prabhupada at the back and his biography, and I was thinking, I want to meet this person. I want to know more of his writing. I want to hear what he has to say. But I was not so fortunate. I was only 14 years old at that time. I had just come with my family to the Netherlands. My mother didn't speak Dutch. And I was the eldest in the family. I was 14 at that time. My brother was 6 years older, so he was 8. And my sister was 9 years younger. So she was 5 years old. And I had to take lead in the family and help them with everything and do my school at the same time. And we had to move a lot of different places because we came to Netherlands just before my country, Holland, became independent from Suriname became independent of Holland. So you can imagine, what kind of situation I was in. And, I read it made big impact on me, but I had to put it aside because there were more pressing things going on in my life at the moment. And then when I was 16 years old, took me after 2 years, I had this in my mind, and I had been to the temple, but I hadn't seen the deities. But what I've heard is Srila Prabhupada singing, and that voice that stayed with me, and the incense in the temple that stayed with me. I could just think of it, and I would, it would come back. And so somehow that I was feeling connected in that way. And when I was 16, then I don't know how, but I was reminded of that Srila Prabhupada had written the Bhagavad Gita in English, and then it was translated in Dutch. So I wrote to the temple and I asked if they could send me one Bhagavad Gita. Then I was 16 years old at the time. So when I got that book, I started reading, and I was, every day I was reading. And then my parents, although they are from Brahmin family, they gave up, being pure vegetarian, and they were eating non-veg food and onion, garlic, and all these things. And I was reading in Bhagavad Gita, and then was Prabhupada saying that we should be vegetarian, we should offer our food to Krishna, because otherwise we eating only sin. So all these things that I was reading had a great impact on me. And I was brought up in thinking in a way that my parents, they used to observe being vegetarian just before there were special functions, if there was Diwali or there was puja at home. So week, 2 weeks, 3 weeks before, everything that was non-veg would go out of the house, and the house would be clean, the kitchen would be completely clean. But then here I was with the Bhagavad Gita, and I got such an attraction to read it, so I wanted to read it every day.
I told my mother I'm not going to eat anything that she's cooking non-vegetarian. And, Prabhupada says in this book, it's not good to eat. And, no, I didn't say. First I said, I'm going to read this Bhagavad Gita. I'm reading this Bhagavad Gita, so I cannot eat. And then I remember my mother getting upset with me because she said, you're living now in this cold country and you need to eat, otherwise you will get weak and things like, I don't know. They had this weird impression in their mind that we had to eat meat and fish and things, just to be strong and bear the cold. And I thought, but I want to read this book. I don't care, So I stopped reading eating like that. And because I was reading the Bhagavad Gita every day. And the more I read it, the more I understood that it was not right to eat non-vegetarian food, and also that it was not proper to eat food that was not offerable to Krishna, and that we should eat pure food. So that's when I changed my diet. I became vegetarian, and I started offering my own food. And so I was reading the Bhagavad Gita daily. And then by doing that between my 16th and 18th year, I'm not exactly when, but some other, I took up chanting and started chanting. I got some guidelines from the temple, get it sent to me, how to chant, and how to make. I didn't get a beat, I just made the beats, and then I was chanting myself. So I was hoping to meet Srila Prabhupada, and I also asked the temple president when he would be good to meet him, how I could meet him. And he told me that they were expecting him to come and he would let me know. So I was waiting for his reply. And then in 1977, I suddenly read in the newspaper that Srila Prabhupada had passed away. That, I didn't know what was disappeared, that he had disappeared. It was in the articles that had disappeared. And I just very vividly remembered that I had to just cry. I just cried and cried. That day I cried for hours because I felt that I missed an opportunity that I wouldn't get back. And I felt cheated. I was really felt cheated. I felt so upset about the whole thing. But then it took me another year before I went to the temple again. At the end of my 18, when I was 18, in August 18, and that year my mother decided to move back to Amsterdam. In the meantime, we had been living in the east of the country. Sorry for being so long-threaded on me and not focusing on Gurudev, but I just like to give you a little bit of the background because it is how I came to Krishna consciousness, and it will link in a moment with, the great fortune, how I came in contact with Srila Gurudev. So it took me up till 1978 to come to the temple. And then I met Bhagavan Prabhu and some of the devotees. And at first, that is the time that it dawned on me that I could join this movement, that I could stay in the temple. Before I thought it was only for white people because I had only seen white devotees. So I thought, I didn't realize that this movement was for everyone and everyone could join. But when it came in 1978, in the meantime, a few Indian body devotees had joined, and two of them spoke with me. Madan Gopal Prabhu, he was called Man Singh at the moment, and Vinod Bina, Bhaktin Bina, and this Prabhu was called Bhakta Man Singh, and they kind of preached to me about Krishna consciousness, and it attracted me. So I thought, oh, they can stay, so I can join too. So then what happened is I started coming to the temple and doing some seva, making some garlands, doing some laundry for the deities, ironing, taking care of Tulsi. And then I would go back home. And I was saying to my mother, I really would like to join this movement. It is wonderful how you can serve Krishna day and night. And she was saying, okay, it's a noble idea, great, wonderful. But she didn't really give me permission like that.
But on the last day of the year, 31st of December, 1978, I remember we were all dressed up to visit my auntie, the whole family. But then I got a call from Bhaktin Bina, and she was getting initiated that day, and Bhakta Mansingh, and they invited me to come down for the initiation. So I asked permission from my parents, and I went, and I stayed for the function, the initiation ceremony. But in the meantime, it had snowed so much. It was like 60 centimeters of snow, and there was no trains and no trams, nothing, no trams, no bus, no taxis, nothing could ride anymore. So I had to stay at the temple in the night. And I called in the evening. I called my mother to ask permission, or actually to tell her that I couldn't come, that I was forced to stay in the temple. But my mother, I don't know what overcame her. And she said to me, if you don't come home right now, you don't come ever again. And I was saying, what is she saying? Oh my God, what is she saying? And then the devotee started preaching to me. And I remember Bhagwan Prabhu saying to me, he's telling the story of Narad Muni and how he had, wanted to become a devotee. And, that one day his mother went to milk the cow and was bitten by a snake. And, Narad Muni took that as the mercy of the Lord. And she kind of interpreted like this way, that your mother has actually indirectly given you permission. So it's up to you. And actually, it's strange, when my mother said that, I don't know what overcame me. And I said, Mom, I cannot come home. If that's what you're saying, then you are forcing me to join the temple, which I wanted to do anyway, but it's up to you, I cannot come, but you're telling me that I cannot come anymore. Then, it's nothing, what can I do? So then in the following days, my determination to stay in the temple started to take more form. But at the same time, I was very doubtful. I didn't know if it was true, if this, I didn't have so much faith in this guru, because I was thinking, Srila Prabhupada was from India, and he was like a sadhu, a real sadhu. And I don't know if this Western people in such 10 years time, they could be a pure devotee. So that night I stayed at the temple. I dreamt of Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada said to me, I know that I understand your doubts. He said, don't worry. He said, I will take care of you. That's what he said. And I took that to be Srila Prabhupada's blessing. So that's how I stayed in the temple. Anyway, so that is how I became a devotee. I joined on the last day of 1978. And then because of the problems with my parents, Bhagwan Prabhu sent me to France. I lived in France for 2 years. In 1979, that's where I got initiated. And then as I told you, in 1986, he left. Then for some years, I was without a guru, without direction. And then in 1990, I met Bhakti Charu Maharaj. In 1993, I took reinitiation from him. And 1996, actually, I moved to India with the idea of living here, but then things went drastically wrong. It didn't work out, and I went back to Holland. And from that moment on, actually, I lived outside the temple, keeping a low profile. And my marriage broke up. I had to take care of my daughter. And in 1997, but I was divorced. In 1997, I met the father of my son. So I had a second child, and in taking care of my children and myself, it kind of took up my time, and my faith was not so strong anymore. So it was like hanging in there, just having faith in chanting and just doing what I could. But I couldn't find shelter anywhere really, so
And at the same time, I was thinking later on, I was thinking, and it took me till 2020, more or less, 2016. 2016, I came in contact with Srila Bodhayan Maharaj of the Gopinath Gaudiya Math on Facebook. And I started asking some questions about Guru Tattva, and he responded to that. And then he came, it just happened that he came down to Amsterdam, and I met him. And so I was interested in associating with him. And through him, I met some followers, devotees that were following Srila Narayan Maharaj, Srila Gurudev. Like I met Kishori Mohan and Sudevi Prabhu in Yashodanandan Prabhu's house in London, and Charu Chandrika Didi, and they kind of made some impression on me. I don't know, it kind of, I thought this is so nice. These devotees are so nice. And it was something there that was attracting me. And also, so I was like, in my heart, I wanted to know more. Suddenly I was wanting to know more of this mood, why they're preaching the Srila Narayan Maharaj, they're talking about him. So I wanted to know about him. I wanted to find out. That's how my interest started. So I started following them mostly on Facebook, what was going on. And the big opportunity for me came during the lockdown period, because then there was a lot of programs on Zoom organized by Yashodanandan Prabhu. And there was like memories of Srila Gurudev, and all the devotees were talking about him. And in this way, I kind of gathered together all, bits of the teachings of Srila Narayan Maharaj, and it was like something that I had never heard before, and I got more and more drawn into it. But then in the same, so I started following some of the main speakers like the sannyasis, and I could follow the katha and understanding. And mainly I was looking for persons who were like speaking clear Hindi or clear English, so I could follow. And then I focused more and more on Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj and Srila Gurudev, Srila Padman Maharaj. And but some other things happened in between, but it will get too much long drawn, for this time. Maybe I will tell the story another time. How much time I have left? Now you have no single second. You have only 1 minute if you want. Pardon? Now you have no single second. Oh my you God. Taken more time, but you finish. Yeah, you finish it within 2-3 minutes, please. Otherwise, You didn't. Yes, I just told about myself and nothing about Gurudev. So anyway, I will get very short. Actually, my first encounter with Gurudev was via email, and I wrote to him not even for myself but for someone else. And that's my contact started with him, and then that was actually in 2020, and some other I got the mercy followed each other very quickly, because then I got Gurudev via email, and then he invited me to communicate with him on Skype. And then from that, the desire came to meet him. So I met him on Nrsingadev's appearance day in this year, 2022, in May in Holland. And it was a very short visit, so I decided to see him again. And then I traveled up to Germany to see him. And at that time, some other Krishna fulfilled all my desires in relation with him. I wanted to connect with him, and Gurudev understood my heart and reciprocated, and he gave me the feeling that he accepted me. And that is the essence of it. And I am just, I adore Gurudev. I think, if there is a description of a guru, of a sadhu, and what all the devotees have said before me, everything is so true. The 26 qualities of a devotee, you can see them so vividly present in Gurudev. His katha is sublime.
his praise, everything he does, the way he moves, the way he speaks, whatever comes off his mouth, the way he interacts with everyone, it's just, in my mind, is no doubt that taking shelter of him, I cannot go wrong. I felt everything I've gone through life is worth it, because I've ended up with him as giving me shelter, and I think just following him, being in the Sangha and being accepted by all of you, I think that was the purpose of my following everything that I'd followed before. I've come to the right place, and I have to just continue. And with all your blessings, I think I will achieve just that, and so I'm very, very happy to be under the shelter of Srila Gurudev. And I'm sorry that the time, I just passed the time just introducing myself instead of glorifying Gurudev. But I had gotten already a written glorification of Gurudev, so I appreciate this opportunity to tell about myself a little bit. And I pray to all of you to please let me have a little corner in the shelter of Srila Gurudev Sangha, so that I can also try to become like all of you wonderful devotees that are there already. Thank you, Prabhu. Dandat pranams to everyone. Hare Krishna, thank you so much. Very beautifully explained by you, really. And you are very senior devotee, actually. We have no idea, but you are very, very senior. That time, I was not in this world, actually. That time I was in Golok, I think. In 1970s. You said 1978. Means, Some you other are very senior. some of people think always that I'm much younger than I am. When I was a new devotee, they were thinking I'm a young girl, so anyway. Yeah. Really. And then you connected with you listen about the Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj in 2016. I started in 2016 to take interest. Yes, it took me actually till the lockdown, till 2020 to really get deep into it, and then things happened very quickly. So I really feel Srila Gurudev showered his mercy on me, and just Gurudev, Srila Prabhupada, they just led me on just to the right persons. Everything just happened so quickly. Yes. ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर रूप से वर्णन किया, और आपने हम लोग को नहीं पता था ये चीज, आपने बताई इतनी सारी बातें, कैसे आप सूरीनाम से फिर आप यहाँ शिफ्ट हुए, और आपके ग्रैंडफादर यहाँ के थे, इंडियंस थे। तो बहुत सुंदर रूप से ये सारी चीजें आपने बताई, और आपने बताया 2020 में आप गुरुदेव से फिर मिले, इस तरह से आप कनेक्ट हुए। तो बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें सुन के, और आप आए, ये बहुत अच्छा लगा। मैंने आपसे एक बार प्रार्थना की और आप बोले हाँ, व्हाई नॉट, डेफिनेटली आई विल स्पीक अबाउट द गुरुदेव, दैट्स गुड। तो थैंक यू so much. Or well, I would have liked to glorify Gurudev more, but I didn't get the opportunity. But I found it necessary to also explain a little bit my own background, so that otherwise, no, this is also important. Everyone will be wondering who is she, and where she come from. Yeah, Anang Mohan Prabhu is giving many thanks. He is saying thank you so much, Didi. And I very nicely explained by you. I'm very, very grateful to Ananga Mohan Prabhu, because he really Anang Mohan Prabhu, you come, what you want to say? Didi want to listen with your lotus mouth. Please, Anang Mohan Prabhu. We'll tell some other time. I wrote it actually down. I will share it. Because actually, Anang Mohan Prabhu is. While preparing for this talk, I wrote everything down that I wanted to say. But the introduction took already so much time. I have no idea how much time I'm taking, because I'm actually, when I speak a lot. And okay, Didi, no problem. You took 40 minutes approx, and you can speak, I think, 2-3 hours, just like Srimad Bhagavad Katha. Thank you so much, Didi. Now I want to connect with Anuradha Didi. Actually, she have very less time. She want to speak. Anuradha Didi, we are here.
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं आशा करता हूँ कि आप अभी तक इस जगत में हैं और आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी वाणी को रखें। जो आपके साथ तो बहुत सारी अनुभूतियां हैं गुरुदेव की, इतनी तो मेरी भी नहीं है, तो इसलिए आप उन अनुभूतियों के बारे में बतलाएं। और आप चंडीगढ़ जाके बहुत दुबले हो गए हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, उतनी जरूरत नहीं हो। अच्छा अच्छा, तो ठीक ठीक है है। दीदी, आप बताइए। और मैं ये भी हरे जानना चाहता हूँ आप कब से जुड़े हैं गुरुदेव से, और इस बारे में भी थोड़ा सा आप बताना। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा, स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तवेवास्मिं ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञा हे राधे त्वां नयमां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम शिला गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवन गोस्वामी महाराज की जय हो। तत्पश्चात परम गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज की जय हो। श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी प्रभुपाद की जय हो। समस्त उपस्थित वैष्णव वृंद की जय हो। सर्वप्रथम मेरे मन में जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तब फर्स्ट डे मैंने इसको अटेंड किया था, रश्मि दीदी ने स्टार्ट करवाया था। तो उसी दिन सबसे सर्वप्रथम एक ही बात मन में आई थी कि भक्ति विज्ञान शिला भारती गोसाई महाराज जी इस बात को बहुत बोलते थे। तो उसी से ये कि जब भी कोई वैष्णव की तिथि आती है तो उस तिथि का पालन करना है। अगर कोई इन तिथियों का पालन नहीं करता है तो उससे अपराध लगता है, और अपराध तो लगता ही है। और इन तिथियों को पालन करने का क्या फल होता है? इन तिथियों को पालन करने का फल ये होता है कि जिसकी वैष्णव बनने की इच्छा है वो इन तिथियों का पालन करने के साथ साथ ही उसमें सारे वैष्णवों के गुण अपने आप ही आ जाते हैं। क्योंकि गुरुदेव के विषय में सुनना, वैष्णवों के विषय में उनकी महिमाओं को उनको उस दिन पे स्मरण करने से हमें क्या होता है, वो सारी चीजें अपने आप से आने लग जाती हैं। जिसकी वैष्णव बनने की इच्छा है उसके लिए इन सारी तिथियों का पालन करना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए गुरुदेव की तिथि उपस्थित हुई, ये देख करके बड़ा अच्छा लगा कि गुरुदेव की महिमा को हम सब लोग मिल करके जो भी है उसी का ही चरमन चर्वित, जो हमने अपने गुरुदेव से, महाराज से या वैष्णवों से सुना उसी को ही दोबारा रिपीट कर रहे हैं, का प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी वही बोलूंगी जो मैंने गुरुदेव से और वैष्णवों से जितना सुना उसी को ही अपनी वाणी से रिपीट करूंगी। तो सर्वप्रथम मैं मतलब अपने गुरुदेव से मिली थी उस समय पे। सर्वप्रथम मेरे को गुरुदेव मिलना हुआ, लेकिन मैं गुरुदेव की बिल्कुल भी कोई किसी भी विषय से अवगत नहीं थी कि गुरुदेव होते क्या हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मुझे जो इस भक्ति मार्ग पे लेकर के आने वाले मेरे जो पथ प्रदर्शक दो गुरुदेव हुए, सर्वप्रथम मेरे को फरीदाबाद से एक दीदी हैं, प्रीति दीदी, उन्होंने बहुत मतलब समझाया इन सारे विषयों में, इंट्रोड्यूस कराया भगवान के विषय में। तो अभी मैं कोई एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें एक बहुत बात बोली हुई थी कि बोल रहे थे जैसे कि सूर्य बहुत दूर होता है और उसका ताप हमें इतनी दूरी से यहाँ पर भी लगता है। यदि किसी ने थोड़ा भी किसी शुद्ध वैष्णव का संग प्रदान कर लिया,
कोई बहुत दूर से भी दूर का यदि कोई किसी शिष्य करके कोई बहुत ही दूर का मतलब कोई व्यक्ति अगर मिल भी जाता है हमें, उससे भी हम हृदय में भगवान की महिमा और वैष्णवों की गुरु महिमा प्रकाशित होनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे सूर्य बहुत दूर है, अभी हमें शुद्ध वैष्णव का संग भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके किसी दूर के व्यक्ति का ही हमें संग प्राप्त हो गया, तो उससे भी क्या होता है, हमारे को भगवान और वैष्णवों की महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित होनी प्रारंभ हो जाती है। फिर गुरुदेव बोलते हैं एक बात को कि जब हम नए-नए इस भक्ति मार्ग पर आते हैं, तब हमारे कान जो होते हैं, वो बहुत कच्चे होते हैं। कच्चे होने का मतलब कमज़ोर होते हैं जस्ट बिकॉज़ कि हम जो भी गुरुदेव जिन विषयों को हमें समझाते हैं, हमारा हृदय और हमारा मन और हमारे कान इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि सिंपल सी जैसे एक ही बात कि कृष्ण ही भगवान हैं। उस बात को भी हमें स्वीकार करने के लिए हमारा मन एकदम से रेडी नहीं होता कि देव हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, इस बात को हम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। लेकिन धीरे-धीरे उन्हीं गुरु और वैष्णवों का संग करते-करते हम क्या करते हैं, इन बातों को मानना, अपने अनुभव में देखना, सब कुछ हमारा धीरे-धीरे करके प्रारंभ होने लगता है। तो सर्वप्रथम जब मैं गुरुदेव से मिली थी, तो मेरे मन में पहले मैंने परम गुरु जी के विषय में सुना, क्योंकि जैसे ही मैं 2012 में आई थी और 2010 में मेरे परम गुरुदेव ने अप्रकट लीला की थी, तब लोगों से परम गुरु जी के विषय में ही सुना। तो उन्हीं को ही मन में अपना गुरुदेव मान लिया था कि यही मेरे गुरु जी हैं और मुझे कोई गुरु जी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परम गुरुदेव ही चाहिए। तो क्योंकि उनकी महिमा से ही सब समय सुन करके देखा, 2 साल जो भी मतलब जब जैसे आई, तो उन्हीं के विषय में सुना। फिर मेरे को रागलेखा दीदी ने गुरुदेव के पास लेकर के गईं और बोला कि तू हरि नाम ले ले। तो मैं उस समय कोई हरि नाम क्या होता है, क्या नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा बचपना और जाकर के गुरुदेव से हरि नाम को दिला दिया। तो जब गुरुदेव से मेरा हरि नाम हुआ, उसके पश्चात मैंने सोचा कि शायद मैं तो अब इनसे मिलूँगी नहीं, क्योंकि मेरे मन में एक बात थी कि ये परम गुरुजी जैसे गुरुजी इतने, अब तो कहने में भी लज्जा आती है ये बात, लेकिन यही होता था कि गुरुजी इतने सुंदर नहीं जितने मेरे परम गुरुजी हैं। तब इस बात का विषय का कोई मतलब ही नहीं समझ में आता था, हम तो बाहरी सुंदरता को ही देखते हैं कि बाहरी सुंदर है कोई व्यक्ति, तो ये मेरा गुरुजी होने चाहिए। लेकिन देख कर के लगा कि मैं तो इनसे दोबारा नहीं मिलूँगी अब परम गुरुजी से अपने। तो और ये सब बातें मुझे एक्चुअली कहने में भी नहीं अच्छी लगती अब तो कि मैं इन सब बातों को कहूँ भी किसी के समक्ष। परंतु जो भी गुरुदेव अगर बुलवाना चाहें जैसा भी, तो उस समय पे फिर उसके बाद गुरुदेव, मेरी पहली जॉब लगी थी, तो मेरा मन था कि मैं अपने घर में कीर्तन कराऊँ और गुरुदेव मेरे घर आएँ। तो गुरुदेव को ये भी नहीं पता था कि मतलब उसके काफ़ी समय तक मेरी गुरुदेव से कोई भेंट नहीं हुई और ये भी नहीं पता था कि अब मैं गुरुदेव से दोबारा मिलने जाऊँगी भी या नहीं जाऊँगी। लेकिन अपने आप ही पहली जॉब लगने पे ये हो गया, मन में पता नहीं कहाँ से ये बात आई कि मैं गुरुजी को बुलाऊँ। और मैं इस बात का बिल्कुल मानती हूँ कि ये मेरे मन की बात हो ही नहीं सकती। हरि सॉरी बोल। माइक। आपकी आवाज नहीं आ रही थी हरि बोल। अब आ रही हाँ हाँ हाँ, है अब आ प्रभु रही है जी? हम्म। तो मैं यही बता रही थी कि गुरुदेव जो हैं वो खुद ही उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, क्योंकि मेरे मन की ये बात हो नहीं सकती कि मैं गुरुदेव को अपने घर बुलाऊँ, क्योंकि जो जिनसे मैं पहली बार मिलने से मैं ये सोच रही थी कि मैं उनसे शायद ही दोबारा मिलूँगी। तो उन्हीं को मैंने फिर अपने आप ही मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे गुरुदेव को घर पे बुलाना है। और हमारा हम किसी को भी अपने घर में कोई प्रोग्राम या कराते हैं, तो उसका चिंतन हम थोड़े दिनों से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं कि जब गुरुदेव आएँगे तो हम ये करेंगे, गुरुदेव आएँगे तो हम ऐसा करेंगे, गुरुदेव आएँगे तो हम वैसा करेंगे। तो वो जो एक आनंद था कि गुरुदेव, पहले फिर गुरुदेव से बात करी और गुरुदेव आने के लिए तैयार भी हो गए और गुरुदेव आए
और मेरे मन में जितने भी संशय थे गुरुदेव को लेकर के, उन सारे संशयों को उन्होंने अपने आप ही दूर कर दिया कि मेरे बिना कहे ही। और ऐसा मैंने एक बार नहीं, कई बार गुरुदेव के साथ अनुभव किया कि गुरुदेव जो हैं वो सबके मन की बात को जानने वाले हैं कि किसी के हृदय में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो उन्होंने जो भी मेरे हृदय में जितनी भी बातें थी, उन सबको मेरे बिना कहे ही, मेरे सारे संशयों को दूर करके मेरा अपने ऊपर विश्वास को खुद ही गठित करा लिया। खुद ही मतलब कि इस मेरे हृदय में अपने प्रति एक श्रद्धा का डेवलपमेंट कराया, क्योंकि मेरे खुद का सामर्थ्य कहीं पे भी कुछ भी नहीं है कि मैं गुरुदेव पे श्रद्धा कर पाऊँ या मैं गुरुदेव के प्रति थोड़ा-सा भी जो मेरा एक अटैचमेंट है वो डेवलप हो पाए। वो भी सारे कार्य गुरुदेव ही करते हैं, उसमें मेरा कहीं पे भी कोई भी रोल नहीं है। फिर गुरुदेव ने मेरे से नेक्स्ट डे मुझे मिले और मुझे बोला कि मुझसे पूछा कि अब तुम खुश हो? और वो दिन जिस दिन गुरुदेव मेरे घर आए थे, वो दिन ऐसा दिन था कि जिसमें शायद से मैं लाइफ में सबसे पहली बार जीवन में इतनी आनंद का और जो रियल हैप्पीनेस का एक अनुभव है, वो मुझे अभी तक लाइफ में, वो मेरा लाइफ का फर्स्ट डे था जिस दिन मैंने एक अलग प्रकार के आनंद को अनुभव किया, जो कि अभी तक मेरे थ्रू आउट द लाइफ कहीं पे भी मैंने उस चीज का अनुभव किया ही नहीं था कि वास्तविक हैप्पीनेस जिसको सर्च कर रहा है एक व्यक्ति, जिसकी खोज कर रहा है, वो यहाँ पर है और वो इधर से मिल सकती है। तो वो जो सारी चीजें थी, जो एक आनंद था, वो जब यहाँ से प्राप्त हुआ, वो ही एक कारण था कि हमारे को इस जगह से जोड़े रखने का। क्योंकि वो हमने जितना भी संसार में अनुभव किया, संसार में इस प्रकार का आनंद कहीं पे भी किसी भी वस्तु में प्राप्त होता नहीं। तो गुरुदेव ने उस एक दिव्य आनंद को, जितना भी था, जैसा भी था, भक्ति सब समय आनंदमय है। कुछ भी करने से भक्ति की थोड़ी-सी भी, अभी तो हम कभी-कभी जब विचार करते हैं तो मन में एक विचार आता है कि भक्ति का भाव भी नहीं किया अभी तो, तब जाकर के इतना इतना ज़्यादा फॉर्च्यूनेट और इतना सौभाग्यशाली और इतना आनंदित फ़ील करते हैं कि जब भक्ति करनी चालू ही नहीं करी है तब ये है। और जिस दिन भक्ति स्टार्ट होगी तो पता नहीं किस प्रकार का एक आनंद होगा। सिर्फ़ अभी ज़रा-सा सा स्पर्श होने से ऐसे वैष्णवों से तब इतना हृदय में आनंद है, तो पता नहीं जब भक्ति हृदय में आएगी तो किस प्रकार की एक आनंद को हम अनुभव करेंगे। तो गुरुदेव ने नेक्स्ट डे यही पूछा कि अब आनंदित हो? तो बिल्कुल बचपना था मन में और ये सोच के कि मेरे आनंद को किसी की नज़र ना लग जाए, तो मैं गुरुदेव को भी नहीं बताऊँगी कि मैं कितनी आनंदित हूँ। तो मन में बस यही रहा कि नहीं, इस आनंद को मैं कभी भी खोना ही नहीं चाहती। ऐसा आनंद मैंने जीवन में कभी भी अनुभव ही नहीं किया। और गुरुदेव का उस समय पे, क्योंकि नए-नए भी थे और एकदम से इतना सब कुछ मिल जाना, तो आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी कि क्या ही मिल गया। और गुरुदेव एक बात हमेशा बोलते थे और जीवन में बस उसी को पालन करने का एक चेष्टा है कि गुरुदेव बोलते थे कि जिस दिन भी भगवान की कथा नहीं, दुर्दिन किसको कहते हैं? बोलते हैं वही दुर्दिन है जिस दिन भगवान की हरि कथा नहीं सुनते। तो या भगवान की हरि कथा नहीं बोलते या सुनते। तो इसीलिए किसी को भी अपना सुदिन बनाना है, अगर हमें हर दिन अपना सुदिन बनाना है, हर दिन बनाना है, तो हमें रोज भगवान की, गुरु वैष्णवों के मुख से कुछ ना कुछ वाणी को अवश्य श्रवण करना चाहिए। इसी से ही हमारा क्या होगा? परम मंगल होगा। और बात गुरु वंदना में भी ये बात आती है, गुरु मुख पद्म वाक्या चितिते करिया एक्या, आर ना करिया मने आशा। होता तो कुछ भी नहीं है और प्रयास करने की, लेकिन ये सारी चेष्टाएं होती हैं कि गुरु जी के जो मुख से निकले अनेक वाक्य हैं, लेकिन उसमें से कोई भी हम छीटा-फूटा कोई एक बात भी अपने जीवन में पालन कर लें, तो उसी से ही हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। और गुरुदेव बोलते थे, मैंने पिछली बार भी इस बात को बोला था और इस बार भी गुरुदेव की वही बात, क्योंकि ये
जो हरि कथाएं हैं नव नवायमान है, कभी भी पुरानी नहीं होती। पिछली बार बोलने से भी और इस बार रिपीट करने से भी हर समय उन सब बातों को स्मरण करना ही चाहिए। तो गुरुदेव हमेशा, मैंने एक बार गुरुदेव से यही पूछा था कि गुरुदेव कि भक्त गुरु की सेवा करता है या गुरु भक्त की सेवा करता है? तो बोलते हैं कि जब भक्त क्या, जो मतलब शिष्य होता है वो इतना छोटा होता है, शिशु के समान होता है, वो तो अपनी पॉटी भी ठीक से धोना नहीं जानता है और गुरुदेव उसकी पूरी साफ सफाई करते हैं, उसके हृदय की, उसमें जितनी भी गंदगी भरी हुई है उसकी सारी साफ सफाई करते हैं। गुरुदेव ही हमारा हृदय का मार्जन करते हैं और इसीलिए गुरु ही सर्वप्रथम शिष्य की सेवा करता है और शिष्य जब गुरु जी के मन के विचारों को धारण करके जैसा वो हमसे चाहते हैं, अगर वैसा बनने का प्रयास करता है, वैसा बन जाता है, तब कहीं जा कर के शिष्य गुरु की सेवा प्रारंभ करता है। लेकिन इनिशियली गुरुदेव ही हमारे हृदय का मार्जन करते हैं और गुरुदेव की, अपने गुरुदेव के प्रति प्यार की निष्ठा को हम सब लोग ही देखते हैं कि वो कैसे अपने गुरुजी के मुख से निकले हर एक वाक्य को कितने सिंसेरिटी के साथ, कितने दृढ़ निश्चयता के साथ और कुछ भी ना देख करके, जैसे गुरु मुख पद्म वाक्या चितेते करिया एक्या आर ना करिया आशा, मतलब अन्य कोई आशा ना रख करके सिर्फ अपने गुरुजी के वाक्यों को स्मरण करके उसी के अनुसार पूरा जीवन अपना व्यतीत करते हैं। उसके अलावा उनके हृदय में कोई अन्य, कोई वार्ता, कुछ भी आशा नहीं होती। उसका छीटा-फूटा कि जैसे हमारे गुरुदेव हैं, उसका कोई छीटा-फूटा भी हम अपने जीवन में आचरण कर पाएँ, ऐसी आशा करती हूँ। और मैंने एक और आर्टिकल बीच में पढ़ा था, उसमें एक बहुत सुंदर बात ये लिखी हुई थी कि किसी की इस जन्म में गुरु के, पहले भगवान के प्रति श्रद्धा रहती है, गुरु के प्रति नहीं हो पाती, लेकिन किसी की भगवान के प्रति श्रद्धा होने पर भी गुरुदेव के प्रति भी श्रद्धा हो गई, तो उसकी अपने गुरु भाइयों प्रति और श्रद्धा नहीं हो पाती, गुरु भाई बहनों के प्रति श्रद्धा नहीं हो पाती। तो बोल रहे हैं कि एक साधक बनने के लिए, यदि आप एक सिंसियर साधक बनना चाहते हो, तो अपने गुरु भाई बहनों के प्रति भी उतना ही प्रेम को डेवलप करना पड़ेगा, वरना तो भक्ति बहुत ही दूर लगता है। तो यदि कोई साधक बनना चाहता है, तो उसके लिए अपने गुरु भाई बहनों को भी उतना ही अधिक सम्मान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि हमने अपने वैष्णवों से देखा कि अगर एक कुत्ते की भी गुरु के प्रति कोई निष्ठा होती है, तो उसको भी हम श्रद्धा और रिस्पेक्ट देंगे। तो ऐसा वैष्णवों से आज मतलब प्रकार से होना चाहिए कि यदि किसी के प्रति भी श्रद्धा या कोई बोल भी देता है, उसको क्या करना चाहिए कि गुरुदेव के प्रति उसकी श्रद्धा को ही सब में कंसीडर करके उसके प्रति मुझे अपना अपना प्यार, अपना रिस्पेक्ट सब कुछ रखना चाहिए, ना कि अगर मेरे प्रति उसकी के कटु वचन होने पर भी मुझे उसके प्रति कभी भी द्वेष भाव या भाव नहीं रखना चाहिए। यही प्रयास करती हूँ कि गुरुदेव मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें और कि आपके अनुसार जैसा भी हो पाए, थोड़ा सा भी उन सब विषयों को मैं अपने जीवन में आचरण कर पाऊं। यही गुरुपाद पद्म के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है, उन्हीं से प्रार्थना है और आप सभी हरे कृष्णा। थैंक यू अनुराधा दीदी, आपने बहुत सुंदर रूप से बताया कि किस तरह से आपकी गुरुदेव की अनुभूति हुई और किस तरह से आप गुरुदेव से मिलने के बाद बहुत ही अधिक प्रसन्न हुई
जो वास्तव में आनंद इस जगत में नहीं है, वो आनंद भगवान के नाम में और गुरु वैष्णव की सेवा में है। इस तरह से आपने इस सब का सार यहाँ पे रख दिया और बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया। आपको हृदय से धन्यवाद कि आप आए और आपने यहाँ पे इतना समय दिया और आपने अपनी अनुभूतियों को शेयर किया। तो बहुत अच्छा लगा, आपने इतना सुंदर रूप से बतलाया। और हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छे हमारे प्रभु जी, तरुण प्रभु जी आली गांव से हैं, सब लोग उनको जानते हैं। और तरुण प्रभु जी बहुत सेवा करते हैं गुरुदेव की। आप देखेंगे सदा सर्वदा ये वहाँ पे आली गांव में भी गुरुदेव को बुलाते हैं और उसके बाद फरीदाबाद में लेके जाते हैं। बहुत ही हृदय से सेवा करते हैं, इसमें किसी तरह की कोई अतिशयोक्ति नहीं है और बहुत अच्छा भाव है उनका। गुरुदेव के प्रति बड़ी ही अच्छी प्रीति है। जो लोग जुड़े हैं गुरुदेव से वो लोग जानते हैं। बहुत अधिक हमें तरुण कृष्ण प्रभु के बारे में बतलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही हृदय से गुरुदेव की सेवा करते हैं। आगे अभी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे तरुण प्रभु आए और अपनी उन अनुभूतियों को शेयर करें। और एक चीज तरुण प्रभु ने मुझे बोला था कि गुरुदेव की महिमा वर्णन करने के लिए 10-20 मिनट में क्या वर्णन किया जा सकता है। वो बात सही है। हम लोग अपना पूरा जीवन दे करके भी गुरुदेव की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा ही ऐसी है और उनकी महिमा ही ऐसी है। तो मैं प्रार्थना करूंगा। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि मैंने प्रयास किया था कि सविता दीदी जो वृंदावन में रहती हैं, गुरुदेव से बहुत क्लोज रही हैं, कुछ भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के भी बहुत ही अंतरंग रही हैं। तो हम उनसे प्रार्थना किए थे कि वो कुछ बोलें, तो उनसे बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज मैं जब वृंदावन गया तो फिर मैंने उनसे बात किया, तो सी एग्री, मतलब वो बोलेंगी। लेकिन उनका कहना ये था कि प्रभु जी वो समय मुझे नहीं सूट कर रहा है। तो वो दिन में बोलना चाहती थी, तो दिन में कनेक्टिविटी मुश्किल थी। तो हमने उनसे बोला, तो सी विल स्पीक 7 o'clock, तो कल शाम को 7 बजे से वो बोलेंगी। तो हमारी प्रार्थना है कि आप लोग कल 7 बजे कनेक्ट होंगे। और सविता दीदी बहुत ही सीनियर डिवोटी हैं और बहुत सारी अनुभूतियां हैं उनकी गुरुदेव के प्रति। तो कल वो शेयर करेंगी, हमने उनसे प्रार्थना किया था। और अब हम प्रार्थना करते हैं तरुण प्रभु से। तरुण प्रभु का समय चूंकि मैं ले लूंगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझे वार्निंग दिया था, प्रभु ये समय बहुत ही कम है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप आएं और अपनी अनुभूतियों को शेयर करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तरुण प्रभु, मुझे लगता है आपके माइक में कुछ प्रॉब्लम है, उसे एक बार सेटिंग में या कुछ प्रॉब्लम। हाँ, नाउ इज ओके। हाँ अभी सही आ रही है प्रभु जी आवाज? हाँ 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 हाँ, अभी ठीक है। अब फिर चली गई आपकी आवाज। हरि बोल। हाँ ठीक है। ठीक है। नमो विष्णुपादाय गौर पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वनेति नामिने गौराश्रय प्रदाता त्वं राधा भावास्वादिते नारायणं कृपापत्रं कृष्ण वैभव रूपिणे नमो विष्णुपादाय श्री राधिकायै प्रियात्मने श्रीमते भक्ति वेदांत शिला नारायणीति नामिने वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत शिला
वन गोस्वामी गुरुदेव महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ एवं उनके अहेतु की कृपा की मैं वांछा करता हूँ। तत्पश्चात भक्ति वेदांत नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ, उनके अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ एवं उपस्थित श्रोत मंडली समस्त वैष्णवों को मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम। बड़े सौभाग्य के साथ हमारा आज गुरुदेव की तिथि के उपलक्ष्य में एकत्र होकर उनकी महिमा गान करने का मुझे सुयोग प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बड़ा कृतार्थ हूँ और स्पेशली श्याम प्रभु जिन्होंने मुझे मौका दिया गुरुदेव के महिमा का वर्णन करने का, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं मुख्य रूप से अपना वक्तव्य आरंभ करने से पहले एक बात कह देना चाहता हूँ कि शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर बात कही है वैष्णवों के बारे में। अक्षणु फलम ही त्वादश दर्शनम ही तनु फलम त्वादश गात्र संगा जीवा फलम ही त्वादश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। तो बतलाया है कि ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, हमारी आंखों का फल क्या है, बोले वैष्णवों का दर्शन करना। हमारे शरीर का फल क्या है, उनका संग करना। और जीवा का फल क्या है, उनका कीर्तन करना। तो ऐसे गुरुपाद पद्म उनकी कृपा की अनुभूति का मुझे कीर्तन करने को मिल रहा है, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। अपने आप में यही मेरे लिए भक्ति है, क्योंकि भक्ति कैसे होती है, क्या होती है, मुझे तो कुछ पता नहीं। एक बद्ध जीव विषय भोगों में लिप्त श्री गुरुदेव ने मुझ पे बड़ी कृपा करी, मुझे बलपूर्वक हरि नाम दे दिया। मेरी इच्छा ना होने पर भी मुझे यहाँ तक ले आए और इस लायक कर दिया कि मैं उनके बारे में अपनी वाणी को शुद्ध करने का एक मौका मिला, मुझे उनके बारे में कीर्तन करने का। तो मैं गुरुदेव के संपर्क में कैसे आया, ये 2011 की बात है और इसमें विशेष रूप से एक अहम भूमिका निभाई है हमारे शिवा प्रभु ने। शिवा प्रभु को सभी जानते होंगे, गढ़ी के जो है श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। तो उनके थ्रू मैं भक्ति से जुड़ा। गुरुदेव के बारे में और भी एक दो रोचक बात, अनुभूति संपन्न बात मैं बतलाना चाहूंगा, वो बाद में बताऊंगा। तो 2011 में गुरुदेव हमारे पड़ोस में आए थे। मैं बचपन से ही इस्कॉन जाता था, मतलब इस्कॉन से जुड़ा था, तो भगवान में प्रीति थी। तो मैं स्कूल बंक करके जाया करता था। मेरे 11th में पहले मेरी कंपार्टमेंट आई थी, इसी वजह से मैंने स्कूल बंक करके मंदिर जाना शुरू कर दिया था। तो हरि नाम मैं करता था, मेरा बड़ा मन भी था हरि नाम दीक्षा का। तो 12th के मेरे एग्जाम चल रहे थे बोर्ड के। अब मैं घर से निकलता था बोर्ड के एग्जाम के लिए, लेकिन मैंने बोर्ड के एग्जाम नहीं दिए, मैं इस्कॉन में जाके सेवा करता था। कि मैंने क्योंकि कथा सुनी थी वहां पे वैष्णवों से, तो मन में ही रहता था कि ठाकुर जी अपना आप करेंगे जो भी करेंगे। तो इसको मैंने छोड़ दिया। सीबीएसई के अपने एग्जाम 12th के, मेरी कंपार्टमेंट आ गई, कंपार्टमेंट का फेल हो गया मैं। तो घर पे रिजल्ट बता दिया, झूठ बोल दिया, मैंने दिखाया नहीं। फिर पापा को कुछ दिन बाद पता चला तो बड़ा कलेश हुआ। तो गुरुदेव आए। तो हमारा जो चौक है हमारा घर का, तो ज्यादातर गाड़ियां हमारे घर में आके खड़ी होती हैं। मैं नहा धो के मैं छत पे खड़ा हुआ था, गाड़ी आई, वो गाड़ी में लेके आए थे शिवा प्रभु गुरुदेव को। तो पहले शिवा प्रभु उतरे, फिर गुरुदेव, गुरुदेव के साथ में जनकपुरी गौड़िया मठ से 2 ब्रह्मचारी और थे। उत्तम कृष्ण प्रभु भी थे जो उड़ीसा के हैं, उड़ीसा मठ में रहते हैं। तो गुरुदेव आए, मैं पीछे पीछे गुरु जी के चल दिया उनके घर, जिनके घर प्रोग्राम था पड़ोस में गया। कीर्तन स्टार्ट हुआ, मैं पूरे प्रोग्राम में अंदर नहीं घुसा, जहां सब स्लीपर वगैरह उतार रहे थे वहां पे खड़ा खड़ा मैं सुनता रहा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। गौड़िया मठ पहली बार नाम सुना था कि गौड़िया मठ भी कोई होता है, इस्कॉन से जुड़े हुए थे, इस्कॉन के बारे में पता। तो फिर जब गुरुदेव ने हरि कथा बोली, सब चीज हो गई, उसके बाद में अनाउंसमेंट हुई कि जिनको भी हरि नाम लेना है वो ऊपर रूम में जाके गुरुदेव से हरि नाम ले सकते हैं। तो मैं चला गया, मैंने जाके गुरुदेव के सामने बैठ गया। अभी बात भी कुछ भी नहीं हुई थी मेरी गुरुजी से, बात कुछ भी बात नहीं हुई थी, बस जाके गुरुजी के सामने बैठ गया। मैं बैठ गया तो गुरुजी ऐसे मेरी तरफ देखने लगे। सब वहां पे जितने बैठे हुए थे सबसे छोटी
एज का मैं ही था। ये बात है 2011 की। तो मैं बैठा गुरुजी के सामने, गुरुजी ऐसे बेड के ऊपर बैठ के मेरे को ऐसे देख रहे थे। मैं देख रहा, मैंने अरे ये कैसे सन्यासी है, तो ऐसे देख रहे हैं। मैं चुप बैठा, कुछ बोला नहीं। पर पता नहीं है को क्या बोलूं मैं। होता है ना कि जैसे रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला, रसगुल्ले को कोई खा के बोले कि बड़ा मीठा है, सामने वाला पूछे भैया कितना मीठा है, तो उसे बता नहीं सकते हम बोल के कितना मीठा है। अब उसके लिए तो उसे खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा, सेल्फ एक्सपीरियंस से ही पता चल सकता है कि रसगुल्ला कितना मीठा है। तो ये अनुभूति में बोल के आप लोगों को नहीं समझा सकता, क्योंकि ये मैंने सेल्फ रियलाइज की है ना ये चीज। तो मैं जितना बोलूंगा मुझे उतना ही कम लगेगा कि अभी मैं पूरी तरह बोल नहीं पा रहा। गुरुजी बैठे सामने, तो सुदेवी दीदी है गढ़ी की, सरिता दीदी, उन्होंने बोला महाराज जी ये बच्चा पहले से इस्कॉन जाता है, इसको हरि नाम दे दीजिए, हरि नाम करता भी है। तो गुरुजी ऐसे देख के मेरे सर पे ऐसे गुरुजी ने हाथ रखा, बोले अच्छा कब से कर रहे हो? मैंने 1 साल से कर रहा हूँ गुरुदेव। मैंने गुरुजी बोला उनसे, मैंने सीधा बोला मैंने गुरुदेव 1 साल से कर रहा हूँ। गुरुदेव बोले अच्छा। तो गुरुदेव ने सबको सबका नाम बता दिया। मेरा नाम क्या है? मैंने तरुण नाम है। तो बोले कि आज से तुम्हारा नाम तरुण कृष्णदास है। मैं बड़ा खुश हुआ कि नाम के आगे कृष्णदास लग गया। तो सबका हरि नाम हो गया, सबको गुरुजी ने बाहर भेज दिया। मैं अकेला बैठा रहा। मुझे बोले कि तुम बैठो। मैं बैठा रहा। तो मेरे से बोले कि तुम्हें गोपाल मंत्र देता हूं मैं। गुरुदेव स्वयं बोले खुद ही, बोले कि तुम्हें गोपाल मंत्र देता हूँ। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव दे दीजिए जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि वैष्णवों के बारे में थोड़ा सा तो पता ही था, इस्कॉन जाता था, तो कि वैष्णवों की महिमा क्या होती है क्या नहीं होती है। गुरुजी ने मुझे गोपाल मंत्र दिया, मैं बड़ा खुश हुआ कि बताओ मेरी तो दीक्षा भी साथ में हो गई हरि नाम के साथ। तो गुरुजी ने वहां साथ बैठाया, प्रसाद पवाया, गुरुजी का उच्चेष्ट मुझे मिला। बड़ी मतलब एक क्या बोलूं, क्या खुशी हुई थी उस दिन। मुझे घर पे आए और साथ में मेरी मम्मी ने, मेरी दोनों बहनों ने, सबने हरि नाम लिया, तो हम सब बैठ के एक साथ हरि नाम करते थे। तो कुछ दिन बाद मतलब गुरुजी से काफी समय तक मिलना नहीं हुआ। अभी जैसे सब सेलिब्रिटी होते हैं ना, सेलिब्रिटियों को मैसेज करते हैं, सबको, कोई सलमान खान को कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है। तो ऐसे उस टाइम पे मुझे फील होती थी, सेलिब्रिटी वाली फील आती थी गुरुजी के लिए। इस फेसबुक पे गुरुजी के नाम से आईडी थी, तो उस आईडी पे मैं मैसेज भेजता रहता था, लेकिन ना तो कोई सीन करता था ना कोई रिप्लाई करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं गुरुजी से मेरी बात कब होगी। काफी समय, 1 साल हो गया, तो गुरुजी से कोई संपर्क हुआ नहीं। मैं रोता था अकेला में बैठ के, मैंने यार गुरुजी से कोई संपर्क नहीं हो रहा। तो प्रभु जी ऐसा हुआ एक दिन दोपहर को ना, सडनली मैसेज आया फेसबुक पे गुरुजी की तरफ से, हरे कृष्णा। मैं सच में, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने बताया गुरुजी का मैसेज आ गया। मैं तो खुश खुश, अब मतलब क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रिप्लाई भी क्या दूं। तो मैं जाके अपने घर के मंदिर में बैठ गया, मैंने दरवाजा लगा लिया। मैंने गुरुजी को मैसेज करे, मैंने हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी भक्ति नहीं हो रही। गुरुजी बोल रहे महाप्रभु सेव्स योर लाइफ, अपन प्रार्थना करो। इंग्लिश में मैसेज आ रहे। तो मैं गुरुजी से बात करके मैं रोने लगा। मैंने यार गुरुजी, उस दिन के बाद मुझे गुरुजी की बहुत याद है। मैंने यार कैसे भी करके मुझे गुरुजी से मिलना है और गुरुजी से मिलना है। तो एक दिन प्रभु जी मैं दोपहर को ना बड़ा इतना रोया, बहुत ज्यादा रोया। मैंने, मुझे गुरुजी, अगर गुरुजी में शक्ति है ना तो मुझे मिलेंगे कैसे भी करके। तो प्रभु जी सच मानना, झूठ बात नहीं। देखो अपने गुरु की महिमा ना सब शिष्य गाते हैं, और सब शिष्यों का कर्तव्य वास्तव रूप में भक्ति ही गुरु की महिमा का बखान करना है। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, प्रभुपाद बोलते हैं कि जिस समय बोले कृष्ण कथा कही जा सकती है और गौर कथा कही जा सकती है, राम कथा कही जा सकती है, परंतु जब बात आती है ना गुरु तत्व की, तो प्रभुपाद इस बात को वर्णन करते हैं। और ये प्रभुपाद अपने आप को लक्ष्य करके हर शिष्य के लिए ये बात बोल रहे हैं कि उनका कर्तव्य भी ये है और उनको अनुभूति भी ऐसी होनी चाहिए कि जिस समय गुरु की महिमा का बखान करने का शिष्य को मिले ना समय, ये सुयोग मिले, तो करोड़ों जीवा भी कम है और सुनने को मिले तो करोड़ों कान भी कम है। प्रभु जी मैं सोया दोपहर को, मुझे सपने में गुरुजी दिखाई दिए। गुरुजी के दर्शन हुए, मैंने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव मैं सच बता रहा हूँ प्रभु जी, मेरे से सपने में गुरुजी ने ये कहा, बोले तू रोता क्यों है रे? ऐसे करके बोले, तू रोता क्यों है रे? मैं यही हूं और रोया मत कर। प्रभु जी इतना कह के
और गुरुजी थोड़ी देर बैठे, मैंने पैर दबाए गुरुजी के। एज यूजुअल मेरी आदत है, मैं जब भी गुरुजी के पास बैठ जाता हूँ तो पैर पकड़ के बैठ जाता हूँ। और गुरुजी ने, मैंने थोड़ी देर पैर दबाए, फिर गुरुजी उठ के चले गए। सपना टूट गया। मैं लिटरली जब उठा ना शाम को 4 बजे, मैं मम्मी को बताते बताते ना, मतलब मेरा गला भर गया था। मेरे ऐसे ही जब कोई मेरी अनुभूति होती है ना, मैं अपनी मम्मी से शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत समझती है और गुरुजी से जुड़ी हुई भी है। और वो मेरी भक्ति में जो सहारा सहायक है ना, वो मेरी मम्मी है। मेरे को कभी किसी चीज के लिए उन्होंने रोका टोका नहीं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी जनकपुरी गौड़िया मठ में आ रहे हैं, तो मैं गुरुजी के लिए मिलने गया। मैं रात दोपहर को 2:30 बजे पहुंच गया। गुरुजी विश्राम कर रहे थे, तो मैंने डोर में से झांक के देखा कि गुरुजी विश्राम कर रहे हैं। मैं मम्मी से बोल गया, मैंने मम्मी गुरुजी से मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, गुरुजी के लिए कुछ दो। तो मम्मी ने ऐसी जैसी चादर ये मैंने ओढ़ रखी है ना, ऐसी एक गुरुजी के लिए लोई दे दी चादर। मैं लेके गया, तो गुरुजी 4 बजे बाहर आए। गुरुजी ऐसे ना हाथ पे ना फेस पे कुछ लगा रहे थे, शायद मेरे ख्याल से कोई लोशन वगैरह कुछ था, सर्दियों का समय था। मैंने गुरुजी को दंडवत करके, गुरुजी ने, मतलब गुरुजी की एक विशेषता मैं ये बताता हूँ कि गुरुजी जब भी, मैंने देखा भी है कि जब भी कोई शिष्य आता है तो बोलता, आ गए तुम, कहाँ थे? गुरुजी मेरे से बोले, आ गए तुम, कहाँ थे? मेरे से कोई जवाब न मिला, मैं चुप खड़ा। गुरुजी से बहुत देर बात करी। गुरुजी ने ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखा और मतलब टहलने लगे। मैं चुप, क्या बोलूं? गुरुजी के लिए जो चादर लेके आए ना, वो हाथ में पकड़ के खड़ा हुआ, हिम्मत ही नहीं हुई कि देखो। अब गुरुजी इतना क्या, गुरुजी थोड़ी देर बाद नीचे चले गए। सब शिष्य, गुरुजी को तो सब शिष्य घेर के रखते हैं। अब मैं बच्चा, मैं क्या बोलूं, क्या किससे बात करूं, किससे ना। तो एक प्रभु जी से मेरी बात होने लगी। वो प्रभु जी बोले, ये क्या है? मैंने गुरुजी के लिए लाया। तो बोले, तो दी क्यों नहीं? मैंने हिम्मत नहीं। तो मुझे वापस लेके गए गुरुजी के पास। बोले, महाराज ये आपके लिए, आपका बच्चा कुछ लेके आया था। तो गुरुजी मुझसे बोले ऐसे, बोले तुमने दिया क्यों नहीं फिर ये ऊपर? अभी मेरे को फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं इतना सुन के चुप। तो गुरुजी मुझे लेके गए वापस। गुरुजी ने अंदर से प्रसाद भी दिया, वो भी दिया, और ये बोला कि माता जी को आशीर्वाद है मेरा सारे परिवार पे, और अच्छे से भक्ति करो, अच्छे से हरि नाम करो। तो ये तो मैंने स्टार्टिंग की थोड़ी सी अनुभूति बताई, बाकी थोड़ी और बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं गुरु तत्व के विषय में कुछ छोटी सी बातें, 1-2 बातें बोलना चाहता हूँ। इसलिए नहीं, पांडित्य दर्शाने के लिए नहीं, कि गुरुदेव के वास्तव रूप में गुरुजी का संग जितना कर पाया हूं, उनकी वाणी का संग, क्योंकि मेरे से वैसे संग तो मुझे मिल नहीं पाता गुरुजी का, मैं पहुंच भी नहीं पाता जब भी गुरुजी आते, परंतु ये उन्हीं की ही कृपा है कि इतनी दूर से भी वो मेरा ख्याल रख लेते हैं। क्योंकि शास्त्रों में जैसे बताया है कि जैसे भगवान होते हैं ना, चैतन्य चरितमृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि आदि मध्य अंते भागवते एक विष्णु भक्ति नित्य सिद्ध। आर न है कि विष्णु भक्ति, अब यहाँ पे विष्णु भक्ति का अर्थ है कि विष्णु भक्ति से भगवान, बोलते हैं ना, भगवान, भगवान का नाम, भगवान के परिकर और उनके धाम में कोई भी अंतर नहीं होता। तो हमारे गुरुपाद पद्म कौन है? ये तो नित्य सिद्ध परिकर है ना। चैतन्य चरितमृत में एक बात और कही है कृष्णदास कविराज पाद ने, बोलते हैं कि यद्यपि आमर गुरु चैतन्य दास तथा भी जानी अमित हर प्रकाश। जब मेरे साक्षात मेरे गुरुपाद पद्म श्री गौर सुंदर से अभिन्न है, तो उनके लिए तो कोई भी अनित्य वस्तु हो ही नहीं सकती। बोलते अभी 1 तारीख को गुरुदेव की तिथि, आविर्भाव तिथि मनाई गई। वास्तव रूप में देखा जाए तो कृष्ण जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पे आविर्भूत हुए, तो क्या भगवान तभी आविर्भूत हुए थे? भगवान तो उससे पहले भी थे, नित्य काल में है ना भगवान, तो नित्य वर्तमान में। तो अभी सोचने वाली ये बात है, जब भगवान के लिए, जब श्री गुरुदेव के लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आचार्य माम विजान्यात ना अवमानित करिचिता। उद्धव से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि गुरुदेव को, आचार्य को मेरे से अभिन्न मानो। जब मेरे गुरुदेव भगवान से अभिन्न है, तो यद्यपि भगवान कृष्ण का जैसे आविर्भाव होता है, परंतु उससे पहले भी भगवान नित्य है और आगे भी नित्य रहेंगे। उसी प्रकार गुरु जी का इस भौम जगत में गुरु जी का आविर्भाव तो उस तिथि को हुआ, परंतु लेकिन गुरुजी तो नित्य आविर्भूत है ना, उनका तो सब समय आविर्भाव होता है। भगवान की किसी ना किसी लीला में जब वो सहायक है, तो उनका नित्य आविर्भाव है। तो इस उपलक्ष्य में वास्तव में गुरुजी ने इस धराधाम पे ये आविर्भाव
लीला इसलिए प्रकाशित की कि जैसा हम जैसे बद्ध जीवों का ना वो कल्याण कर सके, और हम जैसे बद्ध जीवों का उनकी महिमा को मनाने का, उनकी महिमा को गाने का अवसर प्राप्त हो, इसलिए गुरुपाद पद में ये आविर्भाव लीला करते हैं। तो भैया ऐसा हुआ कि एक समय की बात है, मैं गुरुजी के विषय में क्या ही बोलूं, बस उनके लिए तो कुछ कहना और सुनना सब चीज परे है उनके लिए वास्तव में, यदि बोला जाए, क्योंकि गुरु तत्व अपने आप में ही एक भक्ति है। वास्तव में ये भक्ति की यदि कोई व्याख्या की जाए ना, तो राधा कौन कृष्ण कौन ये तो जानना बहुत बाद की बात है। वास्तव रूप में हम गुरुदेव को या गुरुदेव के विषय को जानने, क्योंकि वस्तु के वैशिष्ट्य को जानने के लिए वस्तु का वस्तुत्व जानना बहुत जरूरी है। थोड़ी जटिल भाषा है, इसको थोड़ा अगर मैं इजीली समझाऊं कि किसी भी वस्तु की गुणवत्ता को जानने के लिए उस वस्तु के वैशिष्ट्य को जानना बहुत जरूरी है, वस्तुत्व को जानना बहुत जरूरी है। गुरुदेव का वैशिष्ट्य क्या है, इस चीज को जानने के लिए भगवान भक्तों की महिमा को प्रकाशित करते हैं, और भक्त क्या करते हैं, वो भगवान की महिमा को प्रकाशित करते हैं। भगवान का श्री विग्रह, भगवान का प्रसाद, गुरु और गुरु से मिला मंत्र, इन चारों में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में बोला गया है यो मंत्र स गुरु साक्षात, यो गुरु सा हरि स्वयं। जो हमारा मंत्र वही हमारा गुरु, और जो हमारे गुरुदेव है वो साक्षात भगवान है। ठीक है, तो एक समय की बात है, गुरुजी, एक समय की बात क्या याद होगी, रश्मि दीदी भी थी उस समय पे, फरीदाबाद में प्रोग्राम हुआ था, तो गुरुजी को लेके गए हम, बैठे, मैं सबसे आगे बैठता कथा में हमेशा, तो मैं आगे बैठा, गुरुजी कथा बोलने शुरू करने लगे। गुरुजी ने कथा करने से पहले, मतलब शुरू करने से पहले, गुरुदेव बोले कि मेरी तरफ ऐसे देख के बोले कितनी देर कथा सुनोगे। मेरे को, मैं अल्प बुद्धि प्राणी, मैं मूर्खानंद, मैंने गुरुजी को ये बोल दिया गलती से, मैंने 3 घंटा करो गुरुजी। गुरुजी मेरी तरफ ऐसे देखे, लिटरली ऐसे पहले देखे, 1 मिनट तक कथा बोलना गुरुजी ने शुरू किया। उसके बाद भैया सुचित्रा देव गुरुजी को हो गए 1.5 से 2 घंटे कथा कहते कहते, क्योंकि वैष्णवों का कभी विश्राम नहीं होता, वैष्णवों का तो विश्राम ही हरि कथा है वास्तव रूप में देखा जाए। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, तो उनका तो हरि कथा में ही विश्राम है। हम जैसे बद्ध जीवों का तो थोड़ी देर में 10 मिनट बैठ जाए तो पैर दर्द करने लगते हैं, हम हमेशा अपनी सुविधा देखते, कथा में जाते हैं तो भी कुर्सी चाहिए हमको बैठने के लिए। तो गुरुजी बोले, कथा बोलते रहे 1.5 घंटे तक। सुचित्रा दीदी 3 बार खड़ी हो गई, हमारी फरीदाबाद वाली दीदी, चेयर पे से, और अपनी कमर को ऐसे सीधी करके फिर बैठ जाए, फिर खड़ी हो जाए, फिर बैठ जाए। गुरुजी ने देखा सबको असुविधा हो रही है, और जिनके घर में प्रोग्राम हो रहा भैया उनके लिए भी असुविधा होने लगी, क्योंकि नंबर वाइज धीरे धीरे करके एक एक बंदा उठ के जाने लगा। अब मैं बैठा सबसे आगे, तो मैं कैसे उठ जाऊं, असुविधा मुझे भी हो रही, मैं बैठा हुआ बहुत देर से। गुरुजी ने कथा को विश्राम करके, रश्मि दीदी जैसे मेरे पीछे बैठी हुई थी, तो गुरुजी कथा विश्राम करते ही, विश्राम करने को जा रहे थे, बोले मेरी तरफ ऐसे थोड़ा आगे झुके, मेरे से बोले, मैं चुप, बोले कि मैं 24 घंटे हरि कथा बोल सकता हूँ, जितना तुम सुन नहीं सकते। मैं चुप, जवाब क्या दूं, चुप एकदम। गुरुजी बोल रहे तुमने समय बताया 3 घंटा, अभी 1.5 घंटा हुआ है, सबकी हालत खराब हो रही है, ऐसे करके बोले गुरुजी, सबकी हालत देखो, तुम भी नहीं बैठ पा रहे। मैंने गुरुजी क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। रश्मि दीदी बोल रही कि तूने गलत बोला, गुरु को कभी आदेश नहीं देते। मेरे को पता नहीं, बड़े गुरु भाई बहन ही समझाते हैं। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से अपराध हो गया। गुरुजी बोले नहीं कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले जाओ प्रसाद लगाओ। मैं गया प्रसाद लगाने के लिए, वहां से चले तो गुरुजी बोले, किसी ने क्वेश्चन करा था, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं प्रभु जी का, बोले कि, तो गुरुजी बोले ये मेरा अलीगांव का स्तंभ है। मुझे बड़ी एक मतलब अनिवर्चनीय भाव जिसे बोलते हैं ना, खुशी, वो खुशी मिलती है जब गुरुजी ऐसे बोलते हैं। बोले ये मेरा अलीगांव का स्तंभ है, ये बहुत
ये बहुत लोगों का कल्याण करवाएगा। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अभी तो मेरा ही कल्याण नहीं हुआ। गुरुजी बोले, कल्याण हरि नाम करते हो? मैंने हाँ। तो क्यों नहीं होगा? मैंने मन में एक खुशी, जब भी मैं अपनी अयोग्यता देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे से बड़ा पापी नहीं, पर जब गुरु वैष्णव के बारे में सुनता हूँ और गुरु जी की तरफ देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपराध करने की एक सीमा है, लेकिन इनकी माफ करने की कोई सीमा है ही नहीं वास्तव में देखा जाए तो। क्योंकि वैष्णव हमें वो दे सकते हैं। शास्त्रों में श्लोक है, भवंती ये यथा देवान देवा अपि तथैवतान छाएव कर्म सचिव साधव दीन वत्सला। हम अनन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं ना, मंगल को हनुमान जी की, बृहस्पति को पीर बाबा की, सोमवार को शिव जी की, सबकी भक्ति करते हैं। तो शास्त्रों में ये बतलाया कि भजंती ये यथा देवान देवा अपि तथैवतान छाएव कर्म सचिव साधवा दीन वत्सला। हम जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं ना, वो हमारी भक्ति के अनुरूप हमें फल देते हैं। कि त्रुटि होगी तो अपराध भी लगेगा और वो गलती भी गलती के हमें सजा भी देंगे। परंतु छाएव कर्म सचिव साधव दीन वत्सल, साधु इतने दीन वत्सल, इतने भक्त वत्सल होते हैं कि हम पे कृपा करके ना हमें वो वस्तु भी दे सकते हैं जिसके हम अयोग्य हैं। मैं तो सब समय अपने गुरुदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि दायित्व के साथ साथ योग्यता प्रदान करना गुरुदेव, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं टिक भी पाऊंगा भक्ति में वास्तव रूप में, मैं सच बताऊं तो वहां से भी चले। एक अनुभूति और है गुरुजी की बड़ी सुंदर। वास्तव में गुरुजी असाधारण है। देखो, सब शिष्य अपने गुरु की महिमा का बखान करते हैं, गुरु के प्रकट लीला में करते हैं, गुरु के अप्रकट लीला में और भी बड़ा चढ़ा के करते हैं। परंतु मैं वास्तव में मैं इस चीज को बोलता हूं कि हे कृष्ण, यदि मेरे मन में एक क्षण के लिए भी मेरे गुरुदेव के प्रति प्रेम आया हो ना, कभी भी आया हो, भूतकाल में भी कभी भी आया हो, तो उसका फल ये देना कि सेवा मिले ना मिले, मुझे मेरे गुरुजी से अलग मत करना कभी भी। गुरुजी सच में असाधारण है। गुरुजी सच में असाधारण है। गुरुजी की एक अनुभूति इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि क्या ही बोलूं, बस क्या ही वर्णन करूं। और ये ज्यादा दूर लंबी बात नहीं है, ये बात है रूप गोस्वामी पाद की तिथि की। श्याम प्रभु जी, आपको याद होगा, आप भी साथ थे। आप ही के साथ हम गाड़ी में गए हुए थे गुरुजी के साथ। गुरुजी का रूम गोपीनाथ गौड़ीय भवन में जब हम रात को पहुंचे थे, गुरुजी का लेफ्ट साइड का रूम था गोपीनाथ गौड़ीय भवन में एंटर करने के बाद नीचे का। तो हरि बोल, आवाज आ भी रही है प्रभु जी आपको मेरी? श्याम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल, श्री राधे। आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही हाँ है? हाँ हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। तो ऐसा हुआ था, रात के टाइम पहुंचे तो बलराम प्रभु, श्याम प्रभु, मैं और एक प्रभु जी और है, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो हम सबको गुरुजी ने बोला कि यहाँ बाहर, गुरुजी देखो अब मतलब कितना वात्सल्य है उनके अंदर कि हमारा सबका कितना ख्याल रखते हैं। तो गुरुजी बोल रहे कि इन सब के लिए हमारे लिए व्यवस्था करवा दी, सब चीज लेटने की। गुरुजी जिस रूम में अंदर की साइड थे उसमें सफोकेशन बहुत ज्यादा थी, सबने ये चीज नोटिस करी। परंतु गुरुजी फिर भी बिना किसी से कुछ बोले कुंडी लॉक की और विश्राम करने चले गए। अगले दिन की बात है, दोपहर का समय था, प्रसाद पाने के बाद गुरुजी विश्राम कर रहे। जो हमारी जनकपुरी वाली दीदी है, उन्होंने प्रसाद बनाया था, तो गुरुजी को प्रसाद पवा के गुरुजी विश्राम करने लगे। श्याम प्रभु जी, आप भी थे उस समय पे, तो आप चरण सेवा करके बाहर आ गए थे। मेरे से भी आपने बोला था बाहर चलने के लिए, मैंने बोला मैं प्रभु जी अभी आता हूँ थोड़ी देर बस सेवा करके। तो आपकी कृपा से मुझे थोड़ा सेवा में मिल गया थे, सेवा मिल गई थी गुरुजी की। तो गुरुजी ने ऊपर का अंगवस्त्र उतार के बनियान पहना हुआ था ऊपर, और लेट गए थे गुरुजी ऐसे बैक साइड में। कम तो मैं चरण दबाते दबाते तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी विश्राम कर गए, गुरुजी सो रहे हैं। तो मैं चरण दबाता रहा, तो मुझे 10 से 15 मिनट हो गए। फिर मुझे लगा कि हाँ गुरुजी विश्राम कर गए। तो मैं दंडवत करके बाहर जाने वाला था, इतने में गुरुजी ने करवट ली। तो मैं वापस दोबारा पैर दबाने लगा। मैंने अभी सोए नहीं है, अभी विश्राम नहीं किया, गुरुजी ने थक गए होंगे। क्योंकि हमारे देखो प्रभु जी, हम सब
जो है जड़ जगत के प्राणी है तो हमारी जड़ बुद्धि है, और वो परमार्थ जगत की नित्य वस्तु है, तो उनको समझना इस जड़ बुद्धि से कदापि संभव नहीं है। तो मैं चरण दोबारा दबाने लगा। लिटरली गुरुजी ऐसे करके लेटे हुए थे मेरी तरफ से, मतलब मेरी तरफ पीठ थी गुरुदेव की, और मैं बैक साइड में खड़ा हुआ था। सडनली ऐसे गुरुजी एकदम उठे, सडनली उठे और मेरी तरफ ऐसे देखा, बोले कौन हो तुम, ऐसे करके। मैं हैरान हो गुरुजी की शक्ल देख रहा। मैंने गुरुजी मेरे से बोल रहे कि मैं कौन हूँ। मैंने गुरुदेव क्या हुआ, मैंने कुछ दूं पानी वानी। गुरुजी बोले छुओ मत, जाओ जाओ जाओ, अभी बाहर जाओ, अभी जाओ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। मैंने यार गुरुजी से आज्ञा ली थी मैंने अभी सेवा करने के लिए, गुरुजी कह रहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैं चुपचाप, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं दंडवत करा, मैं बाहर आ गया। तो उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। मैं अभी कुछ समय पहले, करीबन 8 से 10 दिन पहले, वो श्रील भक्ति वेदांत वामन महाराज जी के उपलक्ष्य में, वार्षिकोत्सव में उपलक्ष्य में जो है ना, वो प्रकाश हुई थी पत्रिका, उसे पढ़ रहा था। तो उसमें एग्जैक्ट मुझे वही आर्टिकल मिला जिससे मेरा संशय का जो है शोधन हो गया। उसमें मैंने पढ़ा था कि भक्ति वेदांत वामन महाराज जी ने उमा दीदी को पत्र लिखा था, तारीख ये 1971 की बात है, आई थिंक 12 अगस्त का है, और जिसके पास वो पत्रिका वो पढ़ सकता है प्रूफ के तौर पे। उस पत्र में ये लिखा था, महाराज जी ने उमा दीदी को लिख रहे थे, वैष्णवों के बारे में संवाद चल रहा था। तो उस संवाद में महाराज ने ये बात लिखी थी कि जागृत अवस्था जो होती है और जो निद्रा अवस्था होती है, हम जड़ जगत के लोगों के लिए होती है। जो परमार्थ जगत के गुरु वैष्णव होते हैं ना, उनके लिए जागृत अवस्था और निद्रा अवस्था होती नहीं है। उनका निद्रा में भी जो है भगवत सेवा चल रही होती है। तो उस समय मैं ये सोच रहा था कि मैं संपूर्ण रूप से अयोग्य, और गुरुदेव कहाँ किस भाव में थे, कहाँ सेवा कर रहे होंगे भगवान की, और मैं अयोग्य होने के कारण मेरा स्पर्श उनसे हुआ तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, उनकी सेवा यदि भंग हुई होगी या कुछ भी हुआ होगा, तो वो मुझे अब बड़ा धिक्कार हुआ इस चीज पे। उसके बाद में ये मैंने एक प्रश्न रखा था किसी सीनियर वैष्णव के सामने। मैंने पूछा कि प्रभु जी ऐसे ऐसे बात हुई थी। तो बोले कि देखो गुरु वंदना करते हो ना, उसमें एक बात है। बोले क्या, बोले पढ़ के बताओ। तो मैं गाने लगा, श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सदमा वंदो मुहि सावधान मते। बोले हाँ, बोले यही समझो। बोले वंदो मुहि सावधान मते, बोले इसी को बोलते हैं कि वैष्णव। बोले कि हम गुरुदेव को अपनी तरह समझ लेते हैं कि पंच भौतिक शरीर है, और इनको भूख भी लगती है, इनको प्यास भी लगती है, थक गए होंगे, पैर दबा देते हैं, सुला देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता। बोले सेवा के अनुसार करनी चाहिए कभी भी। बोले कि जो सेवा वैष्णवों के लिए, गुरुदेव के लिए, उनकी सेवा में हमारी सेवा यदि बाधा डाले ना, तो वो सेवा नहीं, वो सेवा अपराध हो जाता है। तो उस दिन मुझे ये चीज समझ में आई, और मैंने सोचा कि अब ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे गुरुदेव को कोई भी आंतरिक या बाह्य दशा में कोई भी कष्ट हो। मैं शास्त्रों के निहित कुछ 1-2 बात बतलाना चाहूंगा। समय तो है ना प्रभु जी अभी? हरि बोल। जी प्रभु जी बोलिए, सारा ही आपका समय है। हाँ बस प्रभु जी धन्यवाद। तो उसी आर्टिकल में हरि मैंने बोल, बोलिए बोलिए प्रभु जी, कह रहा हूँ समय आपका ही सारा है। जी, तो बोलते श्री विग्रह का दर्शन जिस प्रकार कानों के द्वारा ही सुष्ठु रूप से भली भांति संपन्न होता है, भगवान का दर्शन जड़ नेत्रों से हो ही नहीं सकता। वास्तव में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का दर्शन कदापि संभव ही नहीं है इन जड़ नेत्रों से, जड़ चक्षुओं से संभव ही नहीं है। तो बोले वो कानों के द्वारा सुष्ठु रूप से जो है स्थापित होता है। इसका उदाहरण दिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी का आर्टिकल मैंने पढ़ा था। तो उसमें प्रभुपाद बतला रहे थे, बोले कि जब यज्ञ पत्नियां जो है, ब्राह्मण पत्नियां जितनी भी है, जब ये भगवान कृष्ण के पास गई और उनके साथ रहने की, उनकी सेवा की, उनके संग की जब प्रार्थना की, तो भगवान ने उन समय उनको ये कहा था कि तुम जाओ
और मेरे नाम रूप गुण लीला का अनुशीलन करो। इतना कह के उनको भेज दिया और वो चली गई। तो यहाँ पे भगवान ने मिलन से ज्यादा विरह, विप्रलंब भाव की पराकाष्ठा को बतलाया कि मिलन में जो आनंद नहीं है ना, वो विरह में आनंद है। तो उसमें उस समय प्रभुपाद ने विशेष रूप से कुछ शब्दों का व्यवहार करा था, वो शब्द मैं बताना चाहूंगा। बोले टू मच फेमिलियरिटी, क्या था कि टू मच फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। प्रभुपाद के ये वर्ड एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं, जिसको पास पत्रिका हो पढ़ सकता है। टू मच फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट, कि भगवान और भगवत वस्तु, गुरुदेव कौन है? भगवत वस्तु। बोले भगवान और भगवत वस्तु से ज्यादा संबंध, ज्यादा फैमिलिटी हमेशा उपद्रव, अपराध ही पैदा करवाएगा। क्योंकि गुरुदेव कौन है? बोले मुकुंद प्रेष्ठ। मैं अपने यदि गुरुदेव के चरित्र के बारे में थोड़ा बताऊं, क्योंकि गुरु तत्व तो भली भांति सभी जानते हैं, गुरु की महिमा क्या है ये सभी जानते हैं, और शास्त्रों के श्लोक बताने का मतलब मैं अपना पांडित्य नहीं दर्शा रहा, शास्त्रों की बातें हैं तो ये भी ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, क्योंकि सभी गुरुजी से कथा सुनते हैं। तो बोले एक इसमें गुरुजी के चरित्र के लेके मैंने एक बात बतलाता हूँ कि वामन भक्ति वेदांत श्रील वामन महाराज जी का जो आर्टिकल था उसमें एक बात और लिखी हुई थी, और वो गुरुजी पे पूरी तरह लागू होती है। बोले कि गुरु की महिमा तो सब गाते हैं, बोले जब गुरु शिष्य की महिमा को स्थापित करे, क्योंकि गुरु जो होते हैं ना, गुरु वर्ग का गुरुत्व जो होता है ना, वो स्व प्रकाशित होता है। भक्ति वेदांत श्रील नारायण महाराज, ये बात आप सबको याद भी होगी, कथा चल रही थी जनकपुरी गौड़िया मठ में, मेरे ख्याल से पिछले साल की बात है, गुरुदेव कथा कर रहे थे। तो मैं लास्ट वाले दिन ही पहुंचा था, और लास्ट वाले दिन ये प्रसंग चल रहा था, गुरुदेव इस बात को बोल रहे थे कि अपने गुरुजी के लिए, यानी भक्ति वेदांत श्री नारायण महाराज जी के लिए गुरुजी कह रहे थे, हमारे भक्ति वेदांत श्री वन गोस्वामी महाराज बोल रहे कि जब गुरुजी अस्वस्थ लीला कर रहे थे, परम गुरुजी अस्वस्थ लीला कर रहे थे ना, गोवर्धन मठ में थे, तो नवंबर की बात है, कार्तिक परिक्रमा चल रही थी, तो गुरुजी ने मतलब हमारे गुरुदेव परम गुरुजी के पास गए और इच्छा प्रकट की कि मैं विदेश जाना नहीं चाहता, मैं आपकी सेवा भी कुछ समय यहीं पे रह के करना चाहता हूँ, आपका संग प्राप्त करना चाहता हूँ। तो गुरुजी अपने मुंह से बतला रहे, और उस समय इस बात को बताते बताते ना सचमुच गुरुजी का जो कंठ है ना वो भर गया था। मतलब उनकी अपने गुरु से इतनी प्रीति कि इतने समय बाद भी आज उनसे इतना विरह का अनुभव, वास्तव में तो विरह का अनुभव उसी को हो सकता है ना जिसका मिलन हुआ हो, हमारा तो अभी मिलन ही नहीं हुआ। अभी तो जिस प्रकार माँ बच्चे को गोद में लेके चलती है ना, अभी तो गुरुजी हमें ऐसे ही अपनी गोद में लेके चल रहे हैं, हम तो भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। तो गुरुजी बता रहे कि उन्होंने परम गुरुजी के सामने इच्छा प्रकट की कि मैं आपका संग करना चाहता हूँ अभी कुछ समय। तो परम गुरुजी ने बोला, अभी ऐसे गुरुजी बता रहे थे, और इस लाइन को बोलते बोलते उनका कंठ रुक गया था, भर गया था। बोले कि गुरुदेव बोले कि तुम जाओ, मेरी सेवा ही है महाप्रभु की वाणी का प्रचार करो, ऐसा बोला। और बोले मैं तुम्हारा नवदीप में इंतजार करूंगा। तो गुरुजी बोले कि उस समय मैं नहीं समझा कि वास्तव में तो गुरु और शिष्य का संबंध ही ऐसा होता है जब एक दूसरे में से आत्मसात होते हैं। हम तो सदशिष्य नहीं है ना, तो इसलिए अभी हम अपने गुरु की स्थिति समझ नहीं सकते। वास्तव में गुरुजी ने परम गुरुजी को, ये बात मैं इसलिए बतला रहा हूँ कि गुरुजी ने हमारे परम गुरुजी को किस तरह से आत्मसात कर लिया, यानी उनकी आत्मा में अपने आप को मिला दिया, उनके मनोभीष्ट को अपना मनोभीष्ट जानकर आज भी वो सब समय सेवा करते हैं, महाप्रभु की, गुरुदेव की गौरवाणी का प्रचार करते हैं। तो बोले मुझे लगा कि हाँ गुरुजी मेरा नवदीप में इंतजार करेंगे, परंतु गुरुजी ने बताया पता नहीं कौन से देश का नाम लिया था, कहीं विदेश में थे। बोले कि वहां उन्हें खबर मिली कि गुरुजी, परम गुरुजी अप्रकट हो गए और ऐसे ऐसे नित्य लीला में चले। बोले मुझे बड़ा दुख हुआ। बोले जब मैंने समाधि पे आके पहली, वो क्योंकि वहां से जब भी आए थे तो पहली बार जब दंडवत करा समाधि पे आके, तो बोल रहे कि मेरे आंखों से आंसू झरझर जाने लगे, और बोला कि मैं उस समय नहीं समझ पाया, परंतु मैं आज समझा कि गुरुजी ने ये बोला कि मैं तुम्हारा नवदीप में इंतजार करूंगा। बोले कि इसलिए गुरुजी ने कहा था कि मैं नवदीप में इंतजार करूंगा।
वास्तव में ग्लोरिफिकेशन गुरुजी की बोलते, क्योंकि अभी गुरुजी को तो हम समझे ही नहीं है। जिस दिन गुरुजी के भावों को स्पर्श भी कर लिया ना, स्पर्श भी कर लिया, उस दिन विषयों से मन अपने आप ही हट जाएगा। गुरुजी के भावों को यदि स्पर्श करना है, यदि थोड़ा बहुत स्पर्श करना है, तो गुरुजी ने ग्रंथ प्रकाशित किया है भ्रमर गीत करके। भैया इंग्लिश के तो मैं पढ़ता नहीं, क्योंकि हमें आती नहीं इतनी अच्छी तरह, परंतु हिंदी के ग्रंथ जो मैंने पढ़े, गुरुजी के जो भाव है ना भ्रमर गीत में, गुरुजी ने कैसे लिखा। शास्त्रों की बातें तो बहुत दूर की बात है, शास्त्र की बातें तो वैष्णव बताते ही है, परंतु जिस प्रकार गुरुजी ने उसमें व्याख्या करी है ना, ऐसा लगता है कि कोई वहीं का कोई आके हमें बता रहा है। कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क या अमेरिका जाए, वहां की एक व्यक्ति तो सुन के बताएगा, परंतु एक व्यक्ति यदि खुद घूम के होके आए ना, तो उसकी बातों से लगता है कि हाँ ये अनुभूति संपन्न है। तो गुरुजी ने जो उसमें प्रकाशित की है ना चीजें, उनसे लगता है कि हाँ गुरुजी इस जगत के है ही नहीं, गुरुजी नित्य जगत के हैं। क्योंकि मुकुंद प्रेष शास्त्रों में बतलाया कि ये बलदेव प्रभु से अभिन्न है, नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है। अब अगर नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है, तो इसमें नित्यानंद नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन में लिख भी रहे हैं कि निताई चरण सत्य ताहर सेवा के नित्य। जब निताई के चरण सत्य है, यानी गुरुदेव के चरण सत्य है, ताहर सेवक नित्य है। अब गुरुजी के चरण सत्य है, तो गुरुजी भी तो सेवक नित्य हुए ना, गुरुजी कहाँ से अनित्य हुए। यद्यपि महाप्रभु नित्य है, अब महाप्रभु से गुरुदेव भी अभिन्न है। ये बात भी चैतन्य चरित्रामृत में बहुत साफ रूप से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने बताया, यद्यपि अमर गुरु चैतन्य दास तथापि जानियामि ताहार प्रकाश। ठीक है, चैतन्य चरित्रामृत में ही ये लिखा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कि कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षर नाना अर्थ कहे। तो इस महिमा श्रीमद् भागवत इसे चैतन्य चरित्रामृत में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने ये प्यार लिखा है कि कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षर नाना अर्थ कहे, ये इस चीज को, ये गुरु महिमा को भी प्रकाशित करता है। ये भागवत की महिमा के साथ साथ गुरु महिमा को इसलिए प्रकाशित करता है कि द्विविध भागवत होती है, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। अभी ग्रंथ भागवत जब जड़ जगत की नहीं है, चिन्मय जगत की वस्तु है, तो उसको समझाने के लिए कोई चिन्मय जगत का ही प्राणी चाहिए। तो गुरुजी उस चीज को हमें देने आए, वो नित्य वस्तु को हमें देना है, परंतु हमारी तो अभी जड़ बुद्धि है, उसको जड़ बुद्धि से तो समझ नहीं सकते। तो इसलिए अभी मैं कहाँ से शुरू करूं और क्या बोलूं, मन में तो इतना कुछ है कि कहता ही जाऊं गुरुजी के बारे में, परंतु मेरी कुछ अयोग्यताएं, कुछ बातें शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए, कुछ अनुभूतियां ऐसी है जो शायद मुझे लगता है कि अधिकार और अनाधिकार का विचार करते हुए ही सामने रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा तो अधिकार नहीं गुरुजी के बारे में उन सब बातों को बोलने का। गुरुजी अपनी कृपा से ही उनको जब सबके सामने प्रकाशित करेंगे तो अलग ही आनंद होगा उस चीज का। तो प्रभु जी शायद मैंने समय ज्यादा तो नहीं ले लिया? ज्यादा तो आपने ले ही लिया, लेकिन अब कर क्या सकते हैं जब ले लिया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ही भगवत गीता में कहा है ना कि जब हो गया जो, उसकी चिंता नहीं करते। मेरी है? अभी सडनली नजर पड़ी ना टाइम पे, तो मुझे लगा कि प्रभु जी असुविधा में तो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा रहा। अब आप संक्षेप में विराम कर दीजिए, क्योंकि आप तो श्रीमद् भागवत के वक्ता लग रहे हैं। क्योंकि भागवत वक्ता जो होते हैं 3-3 घंटे बोलते हैं ना, तो इसलिए अभी आपका इतना टाइम तो हुआ नहीं। नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी मेरा ही क्या दोष है। जब संग ऐसे वैष्णव का हुआ, हमारे गुरुपाद पद्म का हुआ, तो जब देने वाले की कोई सीमा नहीं है, तो हमारी कहाँ से सीमा होगी बोलने की। गुरुजी के संग का यही तो फल है, गुरुजी के संग का, कि कोई विषय मिले और उससे मन थोड़ी भरता है फिर बोलते बोलते। तो अंत में गुरुजी के आविर्भाव को लेके एक बात जो मैंने छेड़ी थी वो अधूरी रह गई। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं गुरुजी से बस ये प्रार्थना करता हूँ
कि हे गुरुदेव, जिस प्रकार आपने हम बद्ध जीवों के लिए, हम सब के लिए इस जगत में आविर्भूत हुए, आविर्भाव लीला की, कि मेरा तो वास्तव में कल्याण उसी दिन होगा कि ये नित्य आविर्भाव आपका मेरे हृदय में और हो जाए। जिस दिन आपका आविर्भाव मेरे हृदय में हो गया, उस दिन मैं आत्मसात करने के योग्य बन जाऊंगा अपने आप को आपसे, और महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना आपसे करता हूँ कि दायित्व के साथ साथ प्रभु योग्यता भी प्रदान कीजिएगा, क्योंकि आप तो नित्य मुक्त है और मैं नित्य बद्ध हूँ। जिस वस्तु तक मैं नहीं पहुंच सकता ना, उस वस्तु को लेके आप इस जड़ जगत में आए, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, मेरे जैसे बद्ध जीव के लिए, परंतु फिर भी मैं अपना आपको इस संसार से अलग नहीं कर पा रहा। यदि आपकी कृपा होगी ना, तो क्षण भर में सब कुछ होगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुपाद पद्म, मुझसे अल्लड़ भाषा में, त्रुटि भाषा में कुछ भी गलत मैंने कम या अधिक कर दिया हो, अधिकार अनाधिकार का विचार करते हुए, तो अयोग्य बालक को क्षमा करना। और अपना साथ, मेरे लिए तो भक्ति यही है कि गुरुदेव अपने से अलग कभी मत करना, बस अपना साथ देना और अपनी चरण सेवा देना। वाणी सेवा दो या वपू सेवा दो, या आप पे निर्भर करता है, परंतु सेवा तो मुझे देना। बस इतना कहते हुए मैं आप सबके चरणों में भी यथायोग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। और प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वाणी को शुद्ध करने का मुझे एक अवसर प्राप्त कराया। धन्यवाद तो आपका कि आप आए और गुरुदेव के लिए इतना सुंदर रूप से बोला। इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां आप जैसे भक्तों की हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपने संग किया है और आपकी जितनी भी बातें थी वो हृदय से निकली हुई बातें थी। ऐसा नहीं है कि ये कोई अतिशयोक्ति है या किसी तरह का कोई यूं ही एक बोलने का है। आपकी जो बातें हैं वो हृदय को स्पर्श कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी अनुभूतियों को ही शेयर किया है। तो बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से पर्सनल चीजें जो गुरुदेव के साथ आपने कथा के बारे में उस दिन बोला था। तो ये सारी चीजें एक जो निष्कपट भाव से रहता है वही सबके सामने रख सकता है। जिसका निष्कपट भाव नहीं होगा वो कैसे रखेगा? तो आपने बहुत सुंदर रूप से वास्तव में वर्णन किया और आप बहुत अच्छा स्पीकर भी हैं। मैंने सुना, मैं तो आपको फर्स्ट टाइम सुना। तो अब आपने बोला ही है कि गुरुदेव हमें ऐसी सेवा में नियुक्त रखें, तो गुरुदेव की इच्छा वो यही होती है कि जब वो बाहर हैं तो भक्त लोग, बच्चे लोग क्या करें कि उनकी ही वाणी का प्रचार करें। तो आप इतना सुंदर बोलते हैं, मैं तो सुना, अभी मैंने तो पहले कभी सुना नहीं था। और आप वहां पे प्रोग्राम्स करिए, अच्छा है, सबको कनेक्ट करके रखेंगे गुरुदेव से तो उनका कल्याण ही होगा। और भगवान ने कहा ही है भगवत गीता में ये बात कि जो मेरे बारे में किसी को बताता है उससे अधिक प्रिय मुझे कोई है ही नहीं, वही मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है। तो आपके अंदर तो योग्यता भी है और आपके अंदर वो गुण भी है और गुरुदेव की विशेष कृपा भी है। मैंने देखा जब भी आप आते हैं तो गुरुदेव बड़ी ही प्रीति करते हैं आपसे और हाथ रख के, ये है मतलब बहुत ही अधिक स्नेह करते हैं। वैसे तो गुरुदेव स्नेह सबसे ही करते हैं, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है। लेकिन आपकी जो अनुभूतियां हैं और वो अंतरंग बातें हैं, हमारे अनंग मोहन प्रभु जी का मैसेज आया था, आपने जो फर्स्ट वाला श्लोक बोला था वो श्लोक शेयर कर देना। अनंग मोहन प्रभु जी फ्रॉम यूके, ही वांट योर श्लोक। फर्स्ट आपने बोला कि जो जीवा का कार्य है वैष्णव का गुणगान करना, इस तरह से वो वाला श्लोक आप शेयर वो कर देना। वो मैं बता देता हूँ। हरि भक्ति दो, भक्ति उदय ग्रंथ का श्लोक है और ये आपको गौड़िया कंठहार में वैष्णव तत्व में मिलेगा। अक्षणो फलम ही त्वादश दर्शनम, वैष्णव तत्व का श्लोक है ये, गौड़िया कंठहार हाँ में। मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, आई विल शेयर। बाकी प्रभु जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने गुरु जी की सेवा का हमें मौका दिया। आगे भी आप हमें बस मैंने नहीं, गुरुजी ही अपनी सेवा का मौका देते हैं। आपने अभी खुद ही बोला ये बात कि हमारी और आपकी कोई योग्यता ही नहीं है कि हम गुरुदेव की सेवा कर पाए, वो कृपा करके ये प्रदान करते हैं। अभी बीच में किसने शेयर की थी ये बात, अनादि ने एक बात बोली थी कि एक समय मथुरा मठ में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम लोग मथुरा मठ में थे। तो उस समय क्या हुआ, गुरुदेव दोपहर में पता है जब स्नान करके ही प्रसाद पाते हैं। तो क्या हुआ, वो स्नान करने के लिए जा रहे थे तो अनादि
पानी शायद रख के वो गर्म करने के लिए पानी आया, फिर गुरुदेव ने बोला उसको, गुरुदेव ने बोला कि देखो हम ये पानी खुद ले सकते हैं, और क्या मैं गर्म पानी खुद लेके नहीं पी सकता हूँ? कर सकता हूँ, लेकिन गुरु वैष्णव क्या करते हैं, ये सब सुकृति बनाने के लिए, कृपा करने के लिए करते हैं। नहीं तो मैं गुरुदेव को अक्सर आपने देखा, सब लोग देखते हैं कि वो सारी चीजें स्वतः ही कर लेते हैं। हाँ तो जी, हाँ इस जी। तरह से वो शिक्षा देते हैं हम लोगों को। इस तरह से क्या वो प्रचार नहीं कर रहे हैं? सर्वत्र ही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक सेवा का मौका देते हैं कि आप इस सेवा में भागी बने, जिससे आपकी सुकृति एकत्रित हो। यही उनका उद्देश्य है। आप देखो कभी भी वो कथा में क्या करते हैं, सारे लोगों को व्यस्त करके रखते हैं, सारे लोगों को। सुबह भी कथा देते हैं, फिर व्यस्त, फिर दोपहर को टाइम नहीं, फिर शाम को टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मन विषय की तरफ ना जाए। ना जाए, सही बात है। यही एकमात्र उनका उद्देश्य रहता है। श्याम तो प्रभु जी, इससे रिलेटेड एक बात मैं बताना चाहूंगा। जी जी जी। मैंने गुरु जी के मुख से ही सुनी भी थी। एक हम्म। समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के जीवन की ये बात है, और गुरु जी के मुख से सुनी। व्यास पूजा के समय की बात थी। तो अभी ये बात मेरे कहने का एक मकसद इसलिए भी है क्योंकि ये जो अभी लाइव ये जूम पे जो कथा चल रही है, इसमें एक दो लोग नए जुड़े हैं जिनको अभी मैंने आईडी शेयर करी थी। तो आजकल जैसे जड़ जगत में देखा जाता है ना कि सब लोग अपनी पूजा करवाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे संत महात्मा हैं जो अपनी पूजा करवाते हैं। तो प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रश्न किया था कि प्रभुपाद तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु न मानिए न मानदेन कीर्तन ये सदारी। जब वैष्णव तृण से भी अधिक दीनहीन और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होते हैं, तो ये अपनी पूजा क्यों करवाते हैं? व्यास पूजा अपनी क्यों करवाते हैं? अपनी आरती उतरवाते हैं या माला पहनते हैं, कुछ भी है। तो ये बात बोलने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो नए लोग हैं ना, वो भी सुने कि वैष्णव ऐसा क्यों करते हैं। तो प्रभुपाद ने पता है क्या बोला कि वास्तव में इस गद्दी पर बैठने का मैं अधिकारी नहीं हूं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को लक्ष्य करके उन्होंने कहा कि उनकी महिमा वर्णन करने के लिए इसको मैंने ग्रहण किया है। और प्रभुपाद कहते खुद इस बात को प्रभुपाद बतला रहे, बोल रहे कि मैं अपने सम्मान के लिए इसको ग्रहण नहीं कर रहा, मैं इन सबके कल्याण के लिए इसको ग्रहण कर रहा हूं कि जब ये वैष्णव पूजा करेंगे ना, तो भगवान कृष्ण इन पे दया करेंगे। गुरु पूजा करेंगे तो भगवान इन पे कृपा करेंगे, इसलिए ये चीज मैं ग्रहण कर रहा हूं। तो गुरुदेव की ये बात, जितना मैं समझ पाया हूं, गुरुदेव ने ये बात इसलिए बतलाई थी कथा में उस समय कि हम तो, आपने जैसे बोला ना, गुरुदेव खुद पानी ले सकते हैं, खुद सब कुछ कर सकते हैं। बोले हम पे कृष्ण कृपा करे ना, इसलिए वो हमें अपनी सेवा प्रदान करते हैं। हम पे कृष्ण कृपा करे इसलिए हमें वो अपनी सेवा प्रदान करते हैं। तो ये गुरुजी के मुख से मैंने प्रभुपाद का ये टॉपिक सुना था, और ये बात इसलिए अभी तक याद है क्योंकि ये बात गुरुजी की ना मेरे दिल को छू गई थी कि हम तो क्या ही सेवा कर सकते हैं, उल्टा हम पे कृपा करके ये हमें सेवा दे रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि उन्हें इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो तो मना ही करते हैं मत करो, ऐसा नहीं है, लेकिन उससे आपकी सुकृति इकट्ठा होगी। ये इसके बहुत सारे शास्त्रीय प्रमाण हैं। जैसे एक उदाहरण आया, क्या नाम है, उदाहरण ये आता है कि एक बार किसी ने प्रश्न किया। प्रश्न ये था उनका कि हम तो ठाकुर जी को प्रसाद ऑफर करते हैं, ठाकुर जी को भोग ऑफर करते हैं, और जब हम ठाकुर जी को भोग ऑफर करते हैं, उसके बाद होता क्या, ठाकुर जी तो कुछ ग्रहण करते नहीं उसमें से, तो फिर हम क्यों ऑफर करें? उनको ऑफर करने की आवश्यकता क्या है? तो यहां पर आचार्यों ने बड़े सुंदर रूप से ये जवाब दिया कि जिस तरह से आप देखेंगे मधुमक्खी जाती है, उस पुष्प पे बैठती है और उस पुष्प से रस को ले लेती है। उस मधुमक्खी ने उस रस को ले लिया मधु के लिए, लेकिन उस पुष्प पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुष्प ठीक वैसे ही दिखलाई दे रहा है। ठीक उसी तरह से जो ठाकुर जी हैं वो सार ग्रहण कर लेते हैं और उसमें कृपा आ जाती है।
तो वैष्णव सेवा से कल्याण होगा, इसके बहुत सारे शास्त्रीय प्रमाण हैं। जैसे नारद जी के पूर्व जन्म की कथा आती है। जब वो दासी पुत्र थे तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में बहुत सारे साधु संत आए थे, उन साधु संतों की मैंने सेवा की और सेवा करके उनके ही आदेश से उनके उच्चिष्ट को पान किया। इस कारण से आज मुझे इस तरह का शरीर प्राप्त हुआ कि मैं यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हैं, विदाउट वीजा एंड विदाउट पासपोर्ट। तात्पर्य क्या कि वैष्णव की सेवा में ये फल है, ऐसा मैं कह रहा हूं ये बात नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं ये बात नहीं है, ये शास्त्र के प्रमाण हैं जी। तो शास्त्र के प्रमाण से ही ये प्रमाणित है। और कृष्णा प्रेमवती दीदी, जो प्रेममयी दीदी जो हैं, वो हमें हमेशा स्टार्टिंग डे 1 से ही कनेक्टेड रहती हैं और लास्ट तक कनेक्ट रहती हैं। थैंक यू सो मच दीदी। और बहुत सारे भक्तों को मैं देखता हूँ वो बिल्कुल ध्यान पूर्वक इसको श्रवण करते हैं, तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच हमारे तरुण प्रभु, आप आए और सुंदर रूप से अपने अनुभूतियों को रखा, लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और कल पुनः हम लोग 7 बजे आएंगे, वैसे हम लोग 8 बजे आते हैं, लेकिन चूंकि वो सविता दीदी जो हैं वृंदावन से, सी वांट टू कनेक्ट 7 o'clock, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग कल 7 बजे आइए। और आज एक तरुण कृष्ण प्रभु ने बोला है, तो कल भी एक तरुण कृष्ण प्रभु हैं, वो भी बोलेंगे। ये प्रभु जी भी कंटिन्यू कनेक्ट रहते हैं और बहुत ही अच्छी अनुभूति है गुरुदेव के साथ इनकी। गुरुदेव के साथ इन्होंने बहुत सारा ट्रेवल किया, इंक्लूडिंग मायापुर, बंगाल में भी गए थे, तो बहुत ही अच्छा अनुभूति वो शेयर करेंगे। और सविता दीदी और 1-2 प्रभु जी और हैं, तो ठीक है, कल हम लोग पुनः 7 बजे आएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।